Absolutely amazing. Right. So let's come back from that to a subject which is not so inspiring. It's politics and what's happening in Maharashtra, Pradeep ji. So, as we were talking about Baba Siddiqui, we were talking about all the other stuff which is happening at the moment. The other stuff which is also happening is the ticket distribution. Ticket distribution को लेकर के finally I believe Amit Shah ji put his foot down and decided कि भाई ये होने वाला है और ये नहीं होगा. I believe there was a somewhat acrimonious meeting in which I think Amit Shah, the Home Minister, laid down the law and got everybody into line. That's what I believe. Somebody has to do it because it was going on, it was endless discussions, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद. Sir, election time hai, people are going to get tickets, people are going to get angry, there's going to be rebels, there's going to be rebellion within the party. And we are seeing all of them, सब जगह, वही हो रहा है. लेकिन प्रदीप जी एक चीज तो है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऑफिशियल लिस्ट रिलीज करी है, जितने 71 के करीब जो लोग रिलीज हुए हैं वो ऑफिशियल लिस्ट है. 99 people have been given. 99 people और एबी फॉर्म उनको दे दिए गए हैं और माशाल्लाह they are very clearly shows they are very confident. जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, I can't say the same thing for the MBA. जहाँ तक MBA का सवाल है, I don't know what's happening over there. Congress and UBT is having a problem where Vidarbha is concerned, and it's going to be an endless bargaining. Yes. And करने वाले थे, फिर और एक डिले, फिर डिले, फिर डिले, डिले, continuous डिले होते जा रहा है. लेकिन अभी तो टाइम. As a congressman, this is nothing is wrong. Nothing is wrong. And if you ask Mr. Sanjay Raut, he says something is wrong, but everything is not wrong. कुछ गलत है. और जहाँ तक के शरद पवार जी का प्रश्न है, वहाँ से तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई एमबीए की सरकार बनने वाली है, बाकी हम लोग संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. And I believe him actually because Mr. Sharad Pawar is concerned, as you know, he's very he's the wisest person going. He is focused very much और उनको बोला पश्चिम महाराष्ट्र फिर fully retain करना है. So I don't think Ajit Pawar is going to score anything in Western Maharashtra. Looks like it. So let's go straight across. I think we've got two of our very esteemed guests with us. We'll be joined by a third, of course. We've got Seema Malik ji from the Sharad Pawar NCP, and we've got Mr. Ajay Pathak from the BJP at the moment with us. Namaskar. नमस्कार. Namaskar, Ajay Pathak ji. Namaskar. Seema Malik ji. Namaskar. नमस्कार. How are you, ma'am? How are you? सबसे पहले सीमा मलिक जी, सीमा मलिक जी, the भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी ऑफिशियल लिस्ट भी रिलीज कर दी है, तकरीबन 99 सीट्स की जो ऑफिशियल लिस्ट है वो रिलीज भी हो गई है. एमबीए की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक. सो डू वी अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट विद द एमबीए बिकॉज बीजेपी सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. दे रिलीज द लिस्ट, दे सेड भाई ये है. So what do you think is happening? Because when I look at Mr. Pawar's face, Sharad Pawarji's face, and whatever he says, I think he is on top of everything. He knows what's happening. सीमा मलिक जी, please. जी देखिए, आपने अपने आप ही बोल दिया. जो भी पवार साहब कहते हैं वो अल्टीमेट होता है. देखिए, एक दिन पहले अगर उन्होंने अपनी ये रिलीज कर दी है लिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो व्हाई यू आर टेकिंग दिस मीनिंग. और हमारी भी ऑलमोस्ट ऑल द सीट्स डिसाइड हो चुकी हैं. देयर फ्यू सीट्स इस पे थोड़ा मतलब कंट्रोवर्सी है या जो भी बहस है. हमारी पार्टी देखिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि दो लोगों की पार्टी हो, केवल जो वो कहेंगे वही होगा. तो नेचुरली और बहुत सारे लोग हैं उसमें एंड सबकी अपनी विचारधारा है. एंड वी आर वेरी श्योर कि अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड मोस्ट ऑफली वी विल आल्सो डिक्लेयर लिस्ट. और सीमा मलिक जी, शरद पवार जी कहा कि 84 इयर्स हो या 90 इयर्स हो, आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर. जो अजित पवार साहब ने कहा कि ये भाई रिटायर होने का है, उन्होंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर. द विंड्स ऑफ चेंज हैव कम एंड आई विल सी दैट दिस पीपल ऑफ दिस स्टेट आर गिवन द रिप्रीव फ्रॉम दिस फैक्ट. उन्होंने आलोचना किया दिस महायुति का. बोले आई विल फ्री द पीपल फ्रॉम द महायुति. सब कुछ दुरुस्त ना हो जाए जब तक, ये बोला उन्होंने. एग्जैक्टली सेड कि जब तक सब कुछ दुरुस्त नहीं हो जाता है महाराष्ट्र में, तब तक मैं एंड देखिए 84 इयर्स के वो हैं एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन आई थिंक. एंड कोई कहने की बात नहीं है इसमें. एंड जैसा केवल युवा होने से ही नहीं आप बहुत वो हो जाते हैं. जो उन्होंने कहा है आप समझ ही गए और हम भी समझ गए कि जब तक महाराष्ट्र में आज जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इनफैक्ट पूरे देश का जो हाल है, तो डेफिनेटली उन्होंने ये बोला है कि जब तक महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, ही इज नॉट गोइंग टू रिटायर. एंड वी रियली प्रे फॉर his long life and but he seems to be doing very well. He seems to have surprised everybody. Let me go across to Mr. Ajay Pathak. Ajay Pathak ji,
बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट रिलीज कर दी है और अपने वाशी में ने गणेश नाइक जी को तो आपने टिकट दे दी, उनके साहबजादे जो हैं संदीप नाइक वो ज़रा बहुत नाराज़ हैं, 2-3 और जगह पे भी लोग नाराज़ हैं, और इधर आशीष शलार साहब को तो आपने टिकट दे दी है बांद्रा में और उनके भाई साहब को भी टिकट दे दी है। तो मतलब आप तो शायद परिवारवाद के खिलाफ थे ना, तो ये तो दोनों भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पे। पाठक जी अब आप बताएं प्लीज। बजाज जी, आपको, प्रदीप जी को और हमारे साथ जो हमारी बहन बेटी हैं उनको, डॉक्टर सीमा मलिक को मेरा जी, डॉक्टर सीमा मलिक, हाँ सीमा मलिक जी को और आपके व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और ये अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि हम महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या बात है। महाराष्ट्र की जनता हमको फिर से मैंडेट देने जा रही है और बड़े मैंडेट के साथ हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार सबसे पहले जिस प्रकार से हमने हमारा जो गठबंधन है, हमारा गठबंधन ये महाराष्ट्र के अंदर सबसे ऑथेंटिक गठबंधन है और उस गठबंधन ने अपनी सीटों का बंटवारा करके महाराष्ट्र के सामने ये बता दिया कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। हम यहाँ लूट खसोट के लिए नहीं कि हमको इतनी सीटें दे दी जाए, हमको इतनी सीटें दे दी जाए, हमको यहाँ दे दी जाए, हमको वहां दे दिया जाए। हम तीनों पार्टियां मिल बैठ करके अपना महाराष्ट्र के हित की बातें सोच करके अपना सीटों का बंटवारा कर लिए और उसके बाद हम चुनाव में गए। आज अभी थोड़ी देर में अजीत पवार जी की भी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाली है और उसके बाद शिंदे साहब की भी पार्टी कांग्रेस ने आपका लूट का प्रॉब्लम कहाँ से हुआ? पाठक जी, कांग्रेस ने आपका पंचनामा निकाला है। अरे हमारे बारे में मत सोचिए सर, अपनी भ्रष्टाचार के पंचनामा कांग्रेस ने निकाला। उनका लिस्ट रेड कार्ड है, बोले कि महायुति का रेड कार्ड है। विधायक खरीदो 50 करोड़, कॉर्पोरेटर खरीदो 1 करोड़, सीनियर ऑफिसर ट्रांसफर 1 करोड़, जिला सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर 25 लाख, तलाती एग्जाम पेपर से 15 लाख, और आपने ग्रुप डी के जो नौकरी करते हैं उनको भी छोड़ा नहीं, उनसे भी 7 लाख का घूस लेते हो अपॉइंटमेंट लेके। ये आपका रेड कार्ड का पंचनामा निकाला है कांग्रेस ने। देखिए वो शायद थोड़ा सा पंचनामा निकालने में चूक कर गए। वो अपना पंचनामा निकाल रहे थे, वो गलती से बीजेपी बोल दिए होंगे। एक बार फिर से उनसे, उनके किसी प्रवक्ता से या उससे पूछिएगा, वो अपना खुद का ये पंचनामा कर रहे हैं कि हम यही करते आए हैं। हमारी न्यू ही इसी पे टिकी हुई है कांग्रेस की कि हम जीप घोटाले से लेकर के नेहरू के जमाने में पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला, और वहां से लेकर के मुंबई के कफन घोटाले तक, मुंबई के कफन घोटाले तक, ये सिर्फ घोटालों के लिए ही जाने जाते हैं। और बजाज साहब सिर्फ आधा मिनट मुझे दीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए। बजाज साहब आधा मिनट दीजिएगा। बोलिए। देखिए इनके यहाँ प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई है। उद्धव ठाकरे और बाकी के लोग अपर हैंड थे, खासतौर से उद्धव ठाकरे अपर हैंड थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जो इनका परंपरागत वोट बैंक था कांग्रेस के, उद्धव ठाकरे साहब का, वो उद्धव ठाकरे साहब के पास आया नहीं। जब वो परंपरागत वोट बैंक नहीं आया, वो चला गया शिंदे साहब के पास। तो कांग्रेस ने ये समझ लिया कि ये तो हमारे लिए एक तरह से धीरे धीरे लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। तो कांग्रेस अब अपर हैंड है। और एक चीज आप ये देखिए कि पिछले 2.5 सालों में अगर कोई पार्टी स्टेबल रही यहाँ पे इन महाविकास आघाड़ी में, तो कांग्रेस, और कांग्रेस का सबसे बड़ी दावेदारी है, कांग्रेस अपनी अगर लोकसभा में 13 सीटें वो जीत करके ले आई तो अपने हिसाब से वो सब कुछ करेगी और अपने हिसाब से महाराष्ट्र में सीटें बांटेगी। लेकिन ये उद्धव साहब को मंजूर नहीं है। इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। उद्धव ठाकरे ने जाकर के अपना दिल्ली दरबार में सब कुछ अपनी मंशा जाहिर करके आए। उसके बाद वहां से उनको ये संदेश दिया गया कि हमारी जो स्टेट यूनिट है जो चाहेगी वो होगा। और इसी कारण है कि आज इतनी खींचतान है और इनकी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, न होने की कोई संभावना है। आप देखिएगा ये युति आज नहीं तो कल पूरी तरह से टूटने वाली है। ये युति आज नहीं तो कल टूटने वाली है। आपने 30 सेकंड बोला, आपको 1.5 मिनट दे दिया सर। मैं अरशद आजमी साहब के पास जाता हूं, कांग्रेस के। अरशद आजमी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। अरशद आजमी साहब नमस्कार। नमस्कार।
बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, महीनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो अरशद आलवी साहब, प्रदीप जी जब रेट कार्ड सुना रहे थे जो कांग्रेस ने इशू किया है युति महायुति सरकार के बनस्पत के किस किस चीज का क्या क्या रेट है, तो पाठक साहब ने कहा कि वो नाम गलती से बीजेपी का लगा दिया, असल में कांग्रेस का होना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि सबसे पहला जो कांड हुआ था यहाँ पे, स्कैम जो सबसे पहला हुआ था वो जीप स्कैम हुआ था पंडित नेहरू के जमाने में। तो पंडित नेहरू के पास आई गई बीजेपी। अब अरशद आलवी साहब आप बोले प्लीज। देखिए, पाठक साहब को शायद पंडित नेहरू जी के जमाने की बातें याद हैं, लेकिन अभी 2.5 साल पहले की बात उनको याद नहीं है। ये जो महायुति की सरकार है, इसकी बुनियाद ही अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार पे रखी गई है। ये बात महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जी के पीठ में छुरा भोंककर किस ईडी के इंक्वायरी से बचने की खातिर उन्होंने लोगों को तोड़ा और वो भाजपा के साथ चले गए। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि अजीत दादा पवार कौन सी ईडी की तलवार जिनके सर पर लटक रही थी, जिससे बचने की खातिर उन्होंने शरद पवार साहब की पीठ में छुरा भोंका और वो भाजपा के साथ चले गए। तो इस सरकार की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर रखी हुई है। और ये जो रिपोर्ट कार्ड, ये जो कार्ड बना है 50 खोखे में एमएलए का और 1 खोखे में 1 करोड़ रुपए में कॉर्पोरेटर का, ये कांग्रेस का सिर्फ कहना नहीं है, ये महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति का कहना है जो भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार की मौका परस्ती से बनी हुई सरकार को बहुत भली भांति जानता है। दूसरी बात यह है कि अभी ये कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा और ये सब होगा। अरे भाई, एकनाथ शिंदे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं ना। अगर एकनाथ शिंदे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं तो क्यों उनको दबाकर आप अपने लिए ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं? एकनाथ शिंदे तो कम सीटों पर लड़े थे लोकसभा चुनाव में और उनका स्ट्राइक रेट भाजपा से अच्छा था। भाजपा तो 30-32 सीटों पर लड़कर जो है वो 9 सीटों पर जीत पाई। तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में आप क्यों नहीं महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लेकिन क्या है कि अब एकनाथ शिंदे से काम हो गया। वो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना था, महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराना था, तो ईडी की तलवार लटकाकर उन्हें तोड़कर यहां लाए और सरकार बना ली। अब काम हो गया तो पहचान नहीं रहे। अजीत दादा पवार ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा बहुत अच्छे से इनके बीच हो गया। अभी भी अजीत दादा पवार को भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो अकेले चुनाव लड़े। क्यों अकेले चुनाव लड़े? क्योंकि आरएसएस ने भी कह दिया कि अजीत दादा पवार जो है उनको साथ लेना वो ठीक नहीं था। भाजपा ये समझती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत दादा पवार की है, अगर उससे वो समझौता करके लड़ भी ले तो आने वाले चुनाव, विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें अजीत दादा पार्टी को वोट देने वाले लोगों का वोट जो है वो भाजपा को ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी भी वो दबाव बनाए हैं कि अजीत दादा पवार किसी भी तरह से नाराज हो जाए। अरे भाई, 40-45 उनके विधायक हैं, आप उन्हें सिर्फ 55 सीट क्यों दे रहे हैं? तो ये देखिए, ये लाडकी बहन आजमी साहब, लाडकी बहन सभी पार्टियों का लाडकी बहन आजमी साहब, ये गेम चेंजर है। लाडकी बहन बीजेपी का कहना है, बोले कि लाडकी बहन टाइम टेस्टेड है। मध्य प्रदेश में 22 इंस्टॉलमेंट दिए हैं महिलाओं को। गोवा में 12 साल से ये स्कीम चल रहा है। ओडिशा में 5 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। ये सब उन्होंने गिन के दिखाया और कहा कि आपका महालक्ष्मी स्कीम सब जगह फेल हुआ, इंक्लूडिंग कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में। तो क्या लाडकी स्कीम महीना एक गेम चेंजर है? आजमी साहब, पाठक साहब आ रहा हूं आपके पास। पाठक साहब एक मिनट, पाठक साहब एक मिनट। आजमी साहब बोलिए। आजमी साहब को बोलने दीजिए ना, आपके पास आजमी साहब सुनिए कि मैं वापस बोल दूं लाडकी बहन स्कीम के बारे में। नहीं, लाडली बहन के बारे में जो आपने बताया है, लाडली बहन योजना 2.5 साल में, आप 2.5 साल हो गया महायुति की सरकार को। महायुति की सरकार ने जमीनें बेचकर, अलग अलग कंपनियों को गुजरात भेजकर किस तरीके से नहीं इस महाराष्ट्र के आवाम को लूटा है। अब आखिरी में जाकर अगर सिर्फ 1500 रुपए का एक वो देकर अगर लाडली बहन को दे रहे, तो ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? अरे भाई, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप आज हालात देखेंगे तो जो महाराष्ट्र में और पूरे देश की जो रीढ़ की हड्डी किसान कहा जाता है, वो खुदकुशी कर रहा है। क्यों खुदकुशी कर रहा है भाई? इसलिए खुदकुशी कर रहा है कि न संतरा, न कपास, न प्याज, न सोयाबीन, किसी का भी दाम उसे ठीक से नहीं मिल रहा।
तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सारी चीजें इंपोर्ट करके अडानी जी के थ्रू ये लोग महाराष्ट्र में बेचते हैं, और किसान जो है बेचारा वो अपना अनाज, अपनी सब्जियां, अपना संतरा लेकर मंडियों में दौड़ते रहता है, उसे दाम नहीं मिलता। अगर उस किसान की उस मरते हुए किसान की बेटी को या उसकी बीवी को या उसकी बहन को अगर सिर्फ 1500 रुपया, वो भी इसलिए कि किसी भी तरह उसका वोट हासिल कर लिया जाए, उसके लिए अगर ये 1500 रुपया दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? मगर यहाँ आपके महालक्ष्मी मुंबई स्कीम शहर फेल आपने हुए भेज कहते दिया हैं अडानी को। बीजेपी से एक मिनट सुन लीजिए साहब, फेल एक हुआ मिनट खाली सुन लीजिए। पूरा मुंबई शहर आपने अडानी को भेज दिया, अब उसके बदले दे क्या रहे हैं? सिर्फ 1500 रुपया। आप यहां से वहां तक देखिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी जगह है, वो सारी की सारी अडानी को आप देते चले जा रहे हैं। तो 1500 रुपया देकर कौन सी बहुत बड़ी बात की? उसके बदले जो महाराष्ट्र का खजाना है उसे पूरी तरीके से खाली कर दिया। आपको मैं बताता हूं, ये जो विकास की गंगा बहाने की बात जो कर रहे हैं, जिसकी सारी बुनियाद महाविकास अघाड़ी ने रखी थी, इसका फीता जो ये सरकार सिर्फ काट रही है। अभी 40,000 करोड़ रुपया ठेकेदारों का इस सरकार के जरिए देना बाकी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे जल मिशन योजना हो। ये 40,000 करोड़ रुपया उन लोगों का बकाया है ठेकेदारों का, ये सरकार उन्हें नहीं दे रही है। तो ये 1500 रुपए भी जो है 46,000 करोड़ रुपया इसका सालाना बजट है। उसके बाद लाट के भाव का जो योजना है उसकी 5,600 करोड़ रुपया उसका बजट है। उसके बाद एक मिनट सुन लीजिए, जो किसानों को फ्री पंप दिया है। अरे भाई साहब, किसान को उसका दाम दो ना, फ्री पंप देने की क्या जरूरत है? आप कपास के किसान को उसका दाम नहीं दे रहे हैं। 5,000 रुपए का, सुनिए, 5,000 रुपए का दाम खुला है, 8,000 की लागत है। आप 10-20 हजार रुपए का उसे पंप देकर उसे बहला रहे हैं। आप सुन लें, तो देखिए, योजनाएं जो है अपने पाप को छुपाने के लिए, इनका जो पाप है उसको छुपाने के लिए ये योजनाएं इन्होंने जारी की है। लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की सरकार अगर आई महाराष्ट्र जो कि आने वाली है, तो इन योजनाओं को डबल लाभ दिया जाएगा महाराष्ट्र के लोगों को। राइट, वील कम बैक टू यू। डॉक्टर सीमा मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी लाड़की बहन की बात की गई, और आई एम श्योर अजय पाठक जी विल हैव समथिंग टू से फॉर दैट, बट आई एम आस्किंग यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। टुडे द बैंक्स एसोसिएशन एंड ऑल द बैंक यूनियंस of Maharashtra, they have announced a strike on the 16th of October. They said they are going on strike क्योंकि ये लाड़की बहन की वजह से उनके ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास या तो बैंक में पैसा नहीं है, वी डोंट हैव द wherewithal टू सर्विस दिस रश। वहां पर लीडर्स आकर के बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको पीट रहे हैं, स्पेशली बीड़ में, लातूर में, इंटीरियर्स में, अलग अलग जगह पे। मैम, हाउ डू यू टैकल दिस प्रॉब्लम? डॉक्टर सीमा मलिक, देखिए, प्रॉब्लम तो इनको ही टैकल करनी है, पर ये कोई भी स्कीम किसी भी मतलब विदाउट एनी किसी भी विचार करे हुए कुछ भी स्कीम ये लागू कर देते हैं। पैसा है, पैसा नहीं है, बट आपने कर दिया। एंड यू सी द टाइमिंग ऑफ द स्कीम। जब भी इलेक्शन आते हैं आप ऐसी कोई स्कीम लगा देते हैं। 1,500 रुपए से क्या होगा एक महिला का? एंड देखिए, ये तो है ही कि दिस यू विल हैव, दे विल हैव टू टैकल। एंड इससे भी बुरी सिचुएशन आएगी। आप देखिएगा, जिस तरह से लोगों ने पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी स्टेट के ऊपर 8.5 लाख करोड़ का कर्जा है। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है, उनको फिस्कल डेफिसिट कितनी है उसकी कोई चिंता नहीं है। बस उन्होंने एक योजना आपको दे दी। और मैं तो देखिए, जब बदलापुर हुआ था तब मैंने हजारों महिलाओं को ये कहते हुए सुना था कि आप पहले हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर ठीक करिए, हमें नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए। वहाँ पे जो क्राउड था वो इस तरह से बोल रहा था। तो देखिए, हर आदमी, केवल आपको लगता है कि हमने आत्मसम्मान खरीद लिया लोगों का ये 1,500 रुपए देके, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए, इस टाइप की चीजें होंगी ही, ऐसा हमेशा ही होता है इनका। कोई भी स्कीम कुछ भी लॉन्च कर देते हैं एंड उसके बाद क्या होगा उसका कोई वो ही नहीं है। बट डॉक्टर सीमा मलिक, इनका कहना, बीजेपी का कहना है, इंडिया अलायंस का महालक्ष्मी योजना हैज फेल्ड। इट हैज फेल्ड इन कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वेयरएज गोवा, मध्य प्रदेश और स्पेशली महाराष्ट्र में, ओडिशा में कंटिन्यूसली कई 10 इंस्टॉलमेंट दिए, कई 22 इंस्टॉलमेंट हो गए। गोवा में 12 साल से स्कीम सक्सेसफुली चल रहा है। जैसे लाड़की बहन हैज सक्सीडेड, बट इंडिया अलायंस का महालक्ष्मी योजना हैज फेल्ड एवरीवेयर। देखिए, सक्सीड अभी आपने
3 महीने से कोई योजना निकाली है, आप बोलते हैं इट हैज सक्सीडेड, तो पता नहीं मुझे, अभी तो टाइम बताएगा कि कितनी सक्सेस उस योजना को मिली है आपकी। और जहाँ तक देखिए कांग्रेस की जो योजना है, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते तो जो भी अच्छा है, पर इन लोग अपना अपना ये लोग नहीं देखते कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोमिसेस दे डू। दे आर क्रिटिसाइजिंग द योजनास ऑफ कांग्रेस, पर ये लोग खुद इन्होंने जो इतने वादे किए थे वो कहाँ गए। आज आप देखिए, जो कोई भी मतलब एक सिंपल सा ही उठा लीजिए, 2 लाख करोड़ की नौकरियां, 15 लाख रुपए वो भी देने वाले थे ना ये लोगों के अकाउंट्स में, वो कहाँ चले गए। आज किसान का क्या हाल है, किसान को बोलते थे कि किसान को जो है मतलब दुगनी कर देंगे हम उसकी आय, एंड सो मेनी थिंग्स, 100 स्मार्ट सिटीज एंड सो मेनी वो थिंग्स। तो ये कहते हैं वादे दुगनी कहाँ हो पर गई जी इनकम। कहाँ है उनके वादे। आज किसानों की क्या पोजीशन है महाराष्ट्र लेकिन में, सीमा आप ये मलिक जी, देखिए। बीजेपी का जी। कहना है दुगनी हो गई इनकम किसानों की, अरे हो उनका चुकी है हिसाब से तो सब कुछ हो गया सर, जी। उनके हिसाब से दुगनी हो गई, उनके हिसाब से तो महंगाई भी नहीं है यहाँ पे, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी महंगाई नहीं कहाँ है, है, बिल्कुल नहीं है कुछ कुछ ऐसा ही नहीं है लोगों के पास। किसान बहुत सुखी है, इसीलिए इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान, जी। इसीलिए ना किसानों के लिए हर 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एकनाथ शिंदे जी ने कहा 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स टू कीप द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द फार्मर्स। 21 लाख हेक्टर्स बैम्बू उन्होंने प्रमोट किया है। 1 रुपी में इंश्योरेंस बीमा, तो यू डोंट थिंक दिस इज, क्योंकि इंश्योरेंस किसी को मिलता कहाँ है सर, 1 रुपए में जो आप इंश्योरेंस बीमा दे रहे हैं, हमने देखे हैं किसानों को भटकते हुए, कब उनको इंश्योरेंस मिलता है किसी भी जगह। मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस उनको कभी मिलता है प्रैक्टिकली। देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम देयर। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है उसका एड्रेस भी नहीं मिलता है वैसे, बाय द वे। जी, पाठक साहब आपके ये पास तो आता उनका हूं मेन इशू था, एंड स्पेशली लोगों के जिनके पास कार्ड्स नहीं है, उन लोगों का क्या, कुछ जी। भी नहीं। तो स्पेशली जो मुझे नहीं जैसे लगता धनगर कम्युनिटी है, इतने बाकी किसान कम्युनिटीज हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 13 पर डे और समथिंग ऐसे बोल रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आखिर मतलब वो ये कह देना, इतने आप कभी भी कोई नीति बना ऑफिस में लेते हूँ हो भैया, किसानों ऑफिस के में। लिए। जी अजय पाठक जी, आप अजय पाठक जी बताएं जी सर, जी जी भीड़ में, जालना में, लातूर में, धुले में, पुणे में बैंक के कर्मचारियों के ऊपर उनको पीटा गया, मारा गया। लोकल जो बीजेपी के लीडर्स हैं, बाकी अन्य जो लीडर हैं, वो लाड़की बहन स्कीम को लेकर के, क्योंकि बैंक के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। एक तो बैंक में कैश नहीं था, बैंक्स में, एक बैंक नहीं बहुत बैंक्स में कैश नहीं था। दूसरा, कर्मचारी नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, इतनी भीड़ को टैकल करने के लिए उनके पास वेयर नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक। सर इसकी क्या मतलब, अगर ये स्कीम जो है लाड़की बहन स्कीम इतनी बढ़िया चल रही थी, तो फिर ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो है, इनको 16 नवंबर को स्ट्राइक पे जाने की क्या जरूरत है सर? अजय पाठक जी प्लीज बोलिए। बजाज साहब, एक चीज आप बहुत जरा जोर से बोलें उससे सर, जरा समझिए। जोर से बोलें, अपनी कड़ाके वाली आवाज में बोलें सर, आराम से मत बोलिए, आप तो जीतने वाले हैं ना, बोलिए जोर से जी प्लीज। अभी बोल दो बस। देखिए 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 बजाज साहब, जी ये जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है, इक्का दुक्का पॉइंट छोड़ दीजिए, 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में, अकाउंट्स में ये पैसे पहुंचे हैं और लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने विड्रॉल किया है। ये सारी चीजें फर्जी है। 1-2 जगह कहीं कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी स्कीम थोड़ी खराब है। हम कांग्रेस की तरह थोड़ी काम करते हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाएं और कोई स्कीम पूरा न करें। कर्नाटक से लेकर के हरियाणा, अभी हरियाणा में इन्होंने क्या किया, इसके लिए तो ये तमाम तरह की लाड़की बहना योजना के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हरियाणा में इन्होंने कहा कि हम 2100 रुपए 2000 रुपए देंगे, इसी स्कीम की नकल करके, और जहां जहां इन्होंने वादे किए, मध्य प्रदेश से लेकर के, और 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार रही, न किसानों को 1 रुपया दिया। जहां पे गंगा जल लेकर के इनके नेता कसम खा रहे थे कि पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, वहां क्या हुआ? 15 महीने की सरकार चली, जब विधायकों से लोग पूछने लगे इनके, तो विधायक इनको छोड़ करके बीजेपी के साथ अलग आए और बीजेपी के साथ सरकार बनाए। कि ये तो फर्जी बोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस के लोग आते हैं, इनके लीडर कसम खा करके चले जाते हैं और भोगना पड़ता है इनके लोकल विधायकों को, इसलिए इनके सरकारों को लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक में क्या हाल कर दिया है हाँ। इन्होंने, कर्नाटक, बीच में मत बोलिए, कर्नाटक में इन्होंने क्या किया? कर्नाटक में इनकी 5 योजना देने के लिए पैसे ही नहीं है। 6-6 महीने से सर, किसी क्योंकि को सेंटर ने आधे फंड से रिलीज ज्यादा नहीं किए। कर्मचारियों को पैसे नहीं है। सर, सीधा आधे रमैया से जी का ज्यादा कहना है कि कर्मचारियों आपको को फंड रिलीज नहीं कर रहे इनका जान के। इनका हिमाचल का, इनका बजाज साहब, जी, इनका बोलिए सर। हिमाचल का मुख्यमंत्री बोला कि जो राहुल गांधी और प्रियंका ने आकर के यहाँ वादा करके गए महिलाओं को पैसा देने के लिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ना हम दे सकते, हम कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे, तनख्वाह नहीं दे पा रहे,
कांग्रेस झूठे वादे करने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस आती है, खटाखट वादे करके चली जाती है, और वो खटाखट के बाद लोग लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद वो लोग अपने अपने ऑफिसों के बाहर बाउंसर लगा करके महिलाओं को भगाते हैं वहां से। वो आपने वो सीन देखा है टीवी पे चलते हुए कि किस प्रकार से नेता अपने ऑफिस के बगल कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बाउंसर लगाए गए, बाउंसर लगा करके अरे तो महिलाओं को आपने भगाया वजह गया। तो लोगों को ये महंगाई मोदी चार्ज है आप पे। महंगाई इस कदर बढ़ गया, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, जुमला, झूठ, नफरत और डर आप पैदा कर रहे हो। महंगाई इस कदर बढ़ गया, टमाटर, ऑनियंस, पोटैटो, सरसों का तेल, प्राइस, फ्रूट्स, पल्सेस, दूध, हर चीज महंगा हो गया। पाठक साहब, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी का पूरा टाइम टेबल लेके सबको प्रचार कर रहे हैं। पाठक साहब, राहुल जो लखनऊ की आपने बात करी, राहुल गांधी 2004 से 2014 तक राहुल गांधी की सरकार थी। उस समय जो महंगाई थी, अभी महंगाई दर जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क Correct है। है, sir. उस समय आज की पूछे तारीख कि में बहुत ज्यादा है। फॉरेन पैसा इनके पास कितना था, कितना एफडीआई आया था, पूरा सब कुछ घोटाले थे। 10 साल में सब कुछ गर्त में डाल दिया था। और राहुल गांधी आज बता रहे हैं हम दुनिया की सबसे बेस्ट इकोनॉमी भारत की है, सबसे ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी भारत की है। और राहुल गांधी को तो दर्द रहेगा, क्योंकि जो जॉर्ज सोरेस अंकल लिख करके दे दिए चिट, वही तो राहुल गांधी को बोलना है यहाँ पे। जॉर्ज सोरेस अंकल से बाहर निकलना नहीं है। और ये बात अडानी की कर रहे थे, वही अडानी जाकर के कर्नाटक में इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छा है, वही अडानी तेलंगाना में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा है। कब तो इनके रिश्तेदार हो जाते हैं अडानी। अगर मुंबई में या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चोर हो जाते हैं। उसी अडानी में इनके अडानी और अंबानी की शादी में इनके मुख्यमंत्री कोट और चश्मा पहन करके चले जाते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो वो चोर हैं। ये लोग जॉर्ज सोरेस के चिट पे चलने वाली कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। 99 सीटों का जो फीवर इनको चढ़ा हुआ था, हरियाणा के पहलवान, किसान और जवान ने उठा के पटक करके राहुल गांधी को घर में बैठा दिया। वही चीज महाराष्ट्र की जनता करने जा रही है कि गलती से 13 सीटें कांग्रेस को दे दिए, कांग्रेस को यहाँ वही फीवर चढ़ गया है। इस बार वो फीवर उतार करके इनको घर में बैठा देंगे और फिर से दोबारा 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधायक चुन के आने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार चलेगी। ये लोग इसी तरह की निगेटिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे। पहली बार जब 2019 में इनकी सरकार आई, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छोड़ा भोग करके जब आए उद्धव साहब, जो जीवन भर कांग्रेस को गाली देते रहे और कांग्रेस कहती रही कि हम कभी भी उद्धव या उनके परिवार के साथ नहीं जाएंगे, वही उसी के साथ समझौता किए। पहली बार आते ही विद इन वीक सारे प्रोजेक्ट, मुंबई से लेकर के नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, जितने प्रोजेक्ट विकास के चल रहे थे सब पे इन्होंने ताला लगा दिया, सबका बजट खत्म कर दिया, सारे विकास को डिरेल कर दिया। यही इनकी सरकार थी। 140 हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली में इनका जो गृह मंत्री है, सिर्फ इनका जो सर आप बोलिए लेकिन मंत्री है घोटाले का 1.5 साल पाठक साहब एक सेकंड रुपए की वसूली कर रहा था इनका गृह मंत्री, और उसी वसूली में जेल में जाकर के आया। अजय पाठक जी मेरी तो बात सुन लीजिए, छोटी सी बात है ना सर। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन 60 रुपए हो गई थी, 60 के 61 रुपए हो गई थी। तो मोदी जी ने यह कहा था कि मेरी उम्र 65 साल की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉलर की कीमत जब मेरी उम्र से ज्यादा निकल जाएगी तो उससे बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट तौर पे परिभाषित हो जाएगा कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई और है नहीं। दूसरी चीज, 65 रुपए का उस वक्त पेट्रोल था, हाहाकार मच गई थी पूरे के पूरे देश में। क्रूड ऑयल उस वक्त मिल रहा था $145 पर बैरल, $145 पर बैरल। आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए है और क्रूड ऑयल की कीमत जो है अभी 73.93 है। तो सर ये क्या है? व्हाई दिस अनोमली? आप बताइए ना। लोग पूछना चाहते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, आप बताइए ना सर। महंगाई तो हुई है, कीमतें बढ़ी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मनमोहन सिंह जी के वक्त कीमतें ज्यादा थी, नहीं थी सर।
आई हैव द फिगर्स हियर, आप चाहें तो मैं आपको भेज देता हूं। अब आप बोलें पाठक जी, बजाज please। साहब, उसके बाद मैं जाता हूं बजाज अरशद साहब। आदमी साहब के पास। बोलिए सर, प्लीज। बजाज साहब, बोलिए, बोलिए अटल सर, जी बोलिए। के समय में, अटल जी के समय में पेट्रोल 54 रुपए था। अटल जी के तो वो मनमोहन सिंह ने बरकरार रखा क्या? अटल जी के समय में सर, जब आपने 54 कहा था रुपए था, 45 रुपए का 52 होगा। रुपए था, 60 रुपए था, तो वो मनमोहन सिंह ने बरकरार रखा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ने 10 कभी साल की वादा नहीं किया सरकार था, उसी पे चली उन्होंने और कभी वही वादा नहीं बरकरार किया था रखा। कि मैं इतना ही या जो रखूंगा। नेहरू जी के समय, या जो 1952 में था, 1990 में था, 1962 में था, वही सर पेट्रोल डीजल ये आज भी क्या हुआ मिलेगा। सर? आपने वादा किया। सर, कांग्रेस आपका लॉजिक ठीक है, कांग्रेस मैं मानता हूं, बजाज लेकिन फिर साहब, आपने वादा क्यों किया? पाठक साहब, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आपने वादा किया था ना कि आप इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, क्यों किया? उसके बाद भी महंगाई साहब, महंगाई 2004 से 2014 के जो बीच में थी, उससे कम महंगाई दर है। अरे सर, क्या हमारा बात करते हैं? इन्फ्लुएंस और महंगाई दर हमेशा से एक सर, महंगाई दर लेवल की में बात नहीं रहा। कर रहा इनकी महंगाई दर सर। जैसे अभी 10% प्रदीप जी से ने ऊपर लिस्ट की पढ़ी, साहब, 10% से ऊपर। सर टमाटर से लेके मटर तक हर चीज तो बढ़ गई है। बजाज साहब, बोलिए सर। 10% इनके समय में 10% से ऊपर की महंगाई दर, और हमारे समय में 5% से ऊपर नहीं जा पाई है। यही फर्क अरशद आजमी है। साहब, और दूसरी चीज, जो डॉलर की आपने बात किया, जी बजाज साहब, जो डॉलर की आपने बात किया साहब, आज डॉलर का कोई महत्व नहीं है। हम अपने रुपए में दुनिया भर के 25 देशों से व्यापार करते हैं। ये मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, न जी। कांग्रेस की सरकारें कर पाई, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। 32 देशों के साथ 25 देशों से हम अरशद आजमी साहब, 32 देशों के साथ 25 नहीं, 32। अरशद आजमी साहब, एक नाथ शिंदे जी ने 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 7 ह्यूज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लेके आए। किसानों के लिए जैसे कहा 125 इरिगेशन प्रोडक्ट्स, पानी की सप्लाई, अवकाल दुष्काल में दोनों किसानों को कॉम्पेंसेशन ₹1 इंश्योरेंस बीमा। बीएमसी में 5 एंट्री पॉइंट्स पर उन्होंने टोल टैक्स फ्री कर दिया है। बीएमसी बोनस, स्टेट गवर्नमेंट बोनस, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर व्यक्ति हर सेगमेंट को खुश कर दिया है। और डेवलपमेंट तो आप जो महामार्ग, समृद्धि महामार्ग से लेके शक्तिपीठ से लेके 300 एकड़ सेंट्रल पार्क से लेके वातावरण पोर्ट में 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो सब जगह दिख रहा है। आप कहां बोल रहे हो कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है? आजमी साहब, देखिए, ऐसा है कि ये बात समझ लीजिए कि जब आदमी डूबने लगता है ना, तो हर तरह के हाथ पैर मारता है। तो ये टोल टैक्स का फ्री करना और ये लाडकी बहन योजना को जारी करना, ये सब हाथ पैर मारने वाली चीजें हैं। भाजपा डूब रही है, भाजपा महायुति की सरकार जो है डूब रही है। महाराष्ट्र, पाठक साहब जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो बहुत सारा गिना रहे हैं कि 62 में क्या था, 68 में क्या था, वाजपेयी जी ने क्या किया। देखिए साहब, महाराष्ट्र का जो नागरिक है ना, वो भाजपा की नीयत को देख रहा है। अडानी या अंबानी का उद्योग लगाना या अडानी अंबानी का किसी चीज में इन्वेस्ट करना, ये गलत नहीं है। गलत ये है कि धारावी में आज जो डेवलपमेंट का काम, धारावी को जो डेवलप करने का प्रोजेक्ट जो अडानी कर रहा है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। 540 एकड़ की धारावी है, सुनिए, 540 एकड़ की धारावी है। जी बोलिए, बोलिए आजमी साहब, बोलिए। पाठक जी, आपको इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने। 540 एकड़ की का धारावी प्रोजेक्ट है, जिसमें 300 एकड़ में डेवलपमेंट होगा, 240 एकड़ रिजर्वेशन में आता है। उसके बदले अडानी को 1080 एकड़ जमीन पूरे मुंबई शहर में मुफ्त दे देगी। क्यों मुफ्त दे देगी भाई? क्या मुंबई की जमीनें इतनी सस्ती है? क्या मुंबई के लोग इतने सस्ते हैं, इतने कमजोर हैं कि उन्हें उठाकर अडानी अपने लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बनाएगा और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाएगा और मुंबई के लोगों को उठा के किसी को अलग कोने में डाल देगा? प्रॉब्लम यहां खड़ा हो रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र के नागरिक ये समझ रहे हैं कि ये वही लड़ाई है जो 1960 में लड़ी गई थी। 1 मई 1960 को 105 लोगों ने अपनी जानों का बलिदान दिया था इस मुंबई शहर के लिए। और उसी मुंबई शहर आज हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक राज्य है। उसकी हैसियत को खत्म करने के लिए भाजपा धीरे धीरे यहां पर काम कर रही है। ये साहब बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मुझे बताइए तो, ये वेदांता और टाटा एयरबस वाला जो प्रोजेक्ट था और उसके अलावा भी और 14-15 प्रोजेक्ट थे, ये गुजरात क्यों चले गए?
क्या महाराष्ट्र की धरती में, महाराष्ट्र के लोगों में इतना वो नहीं है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट को सरकार लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दे? खाली बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लाडकी बहन योजना, लाडकी 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, पूरा खजाना खाली है, सारे पैसे लूट लिए गए। मुंबई को ब्यूटिफिकेशन के नाम पे महानगर पालिका को इस सरकार ने लूटा है। आज महानगर पालिका का 956 करोड़ रुपया इनके ऊपर बकाया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2-4 स्कीमें लगाने के बाद आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बात करने लगे कि ये कर दिया और वो कर दिया। भाई साहब, ये मुंबई शहर है और ये अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, और ये जानता है कि गुजरात के लोग मुंबई शहर को किस नजर से देख रहे हैं, उसकी आर्थिक राजधानी को का जो ये है स्टेटस है, उससे वो खुश नहीं रहते, उसे खत्म करना चाहते हैं। हीरा मार्केट धीरे धीरे चली गई गुजरात, सारे सारे नए प्रोजेक्ट आने वाले चले गए गुजरात। क्यों भाई साहब? मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों का अधिकार नहीं था? ये देखिए, ये बात समझ लीजिए, आरएसएस का प्रोग्राम मुंबई और महाराष्ट्र में कभी कामयाब नहीं होगा। आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, लेकिन आरएसएस के लिए सबसे आसान जमीन गुजरात और मध्य प्रदेश मानी जाती। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वो जगह है जो साहू फुले और अंबेडकर की सरजमीन कहलाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलता है। ये कभी आरएसएस के लोगों को यहाँ कामयाब नहीं होने देगा। लड़ाई यहाँ पे है। ये तो लाडकी बहन योजना और ये बाकी स्कीम का तो जिक्र कीजिए। बाकी 10 लाख स्टूडेंट को 10,000 पर महीने दे रहे हैं, 10 लाख स्टूडेंट को 10,000 रुपए महीने दे रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, मैं पूछ रहा हूँ, इस स्कीम्स का कोई अहमियत नहीं है क्या? वहम है, और आप किसी भी गलत फहमी का शिकार मत रहिए पाठक जी। आपको 23 नवंबर को सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को वैसे ही जैसे हरियाणा में दूर हो रही थी, जैसे हरियाणा में दूर हो रही थी। आजमी साहब, कपट से जीत गए तो जीत गए ना, आजमी साहब, बात नहीं है। कभी कभी जैसे कभी हरियाणा सुनिए में मेरी हो रही थी ना, बात, पहले दिन से ही माहौल बनाए थे कि हमें जीत रहे हैं। कभी सीआर शेर का शिकार हरियाणा कर में लिया क्या करते किया? हैं, पर ये बार बार नहीं होता। वही जैसे हरियाणा में कर रहे थे। वही तो बोल रहा हूँ, कभी कभी सीआर शेर का शिकार कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही हो जाता है हरियाणा में, इसका मतलब हरियाणा में पाठक जी और डॉक्टर सीमा मलिक हरियाणा में, पाठक जी और सीमा मलिक जी जरा ध्यान दीजिए जो अरशद आजमी साहब ने कहा है। आजमी साहब एक सेकंड, एक बात अभी नहीं, जो आपने बात कही मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा कभी कभी सीआर शेर का शिकार कर लेते हैं, तो जो बाबा सिद्दीकी को मारा गया, आज वही चीज जीशान सिद्दीकी ने भी लिखी है कि कभी कभी शेर का शिकार जो है वो सीआर कर लेते हैं। तो उससे रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? जैसे बदलापुर हुआ, पूना की घटना हुई, न जाने 3-4 और ऐसी बुरी तरह घटना हुई। कल्याण में बाय द वे जिस भारतीय जनता पार्टी के शख्स ने गोली चलाई थी एक और शख्स के ऊपर, उसको भी टिकट दे दी गई है बीजेपी द्वारा। आजमी साहब बताएं। बजाज जी, मैं आजमी साहब से पूछ रहा हूं सर। देखिए सुनिए, अभी बहुत बड़ी गवर्नेंस की बात कर रहे थे पाठक साहब। आप मुझे बताइए कि मुंबई जैसा शहर जहां अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था, जहां मुंबई जैसे शहर में एकदम हाई अलर्ट सिक्योरिटी पे रहता है, वहां एक लोकप्रिय नेता का दिन दहाड़े खुलेआम सड़कों पर कत्ल कर दिया जाता है। क्या कर रही थी भैया आपकी सरकार? क्या कर रही थी? क्या आपने सिक्योरिटी का इंतजाम किया? आप लाडकी बहन कर रहे हैं। आप देखिए 7,665 एक साल में रेप केस दर्ज है महिलाओं के खिलाफ इस राज्य के अंदर। आप लाडकी बहन को 1,500 रुपया दे रहे हैं, 1,500 रुपया आप किसी की इज्जत उतार लेंगे? तो खाली चिल्ला कर बोलना, ये करना, सिक्योरिटी देने के बाद एक आदमी मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसने किया उसे खाक में मिला देंगे। आज 9-10 दिन गुजर गया, आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि उस नेता की जान आखिर गई क्यों। तो ये खाली बड़ी बात करें, लूटना इनका मकसद है साहब। ये महाराष्ट्र राज्य को लूट कर इसकी सारी दौलत गुजरात ले जाना चाहते हैं, और ये बात महाराष्ट्र का हर नागरिक समझ चुका है। इसीलिए आप देखिए लोकसभा के चुनाव में अपनी शान को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 9 सीट जीत कर आई। पाठक साहब, आपका मैनिफेस्टो में आपका जो जिस प्रकार से बीजेपी बार है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, 10 लाख युवाओं को 10,000, 8,000 रुपया स्टाइपेंड, अन्नपूर्णा योजना, हायर एजुकेशन फ्री फॉर गर्ल्स, गुलाबी रिक्शा स्कीम, ऐसे 10 स्कीम लेके आप हर घर हर मोहल्ला में जाके ये स्कीम समझा रहा पाठक साहब। क्या ये स्कीम समझा के आप वोट हासिल कर पाओगे? जवाब देना चाहता हूं।
प्रदीप जी, मैं आपकी बात को रोकते हुए इसका जवाब देना चाहता हाँ हूँ। बोलो 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 पूछ रहे हैं। प्रदीप जी, एक मिनट, पहले मैं जवाब दे दूं आपको। बोलिए, सत्ता बोलिए, में बोलिए, है, विपक्ष बोलिए, को बोलिए, बोलने का आप मौका तो बोल चुके दीजिए। हैं, आप बोल चुके अरे हैं। आप बोल चुके हैं क्या? विपक्ष मुझे तो बताने बोलेगी, के लिए आप तो बुलाया सत्ता में खाली। चलो बैठे एक हैं। मिनट ये रुक जो गए पाठक युवा, साहब, बोलिए अभी बोलिए, आपने आजमी साहब किसी बोलिए। युवा स्कीम का जिक्र किया अरे तो हम प्रदीप क्या जी, करें, हमें हाँ भी बोलो जाना बोलो, है। आजमी साहब बोलिए। आपने किसी युवा स्कीम का जिक्र किया। हाँ, युवा मुंबई शहर मुख्यमंत्री में जो युवा जोमेटो, कार्य सुन लीजिए प्रशिक्षण खाली, योजना। मुंबई शहर में जो जोमेटो डिलीवरी करने वाले बॉय अगर आपको कहीं मिल जाए ना, तो रोकिएगा और उनसे पूछिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपको हर दूसरा आदमी एमए ग्रेजुएट किया हुआ, ग्रेजुएट और एमबीए किया हुआ नहीं मिला, वो डिलीवरी बॉय जो खाना बेच रहा है, अब वो लोग आज मजबूर है इस तरह के काम करने के लिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आदमी पढ़ाई, शिक्षा और हायर एजुकेशन क्यों लेता है? ताकि वो बड़े ओहदों पर जाकर काम कर सके, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। लेकिन उन ऐसे नौजवानों को ये खाना बेचने पर मजबूर कर दिया इस महायुति की सरकार ने। ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को जो सिर्फ करप्शन की बुनियाद पर इस महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, आने वाले वक्त में आप देख लेना, ये पिछले टाइम तो इनका स्ट्राइक रेट भाजपा का जो भी रहा होगा, उससे भी कई गुना इनका स्ट्राइक रेट इस चुनाव में 160 सीटों पर लड़ रहे हैं ना। अब देखिएगा आने वाले चुनाव में बोलिए पाठक साहब, बोलिए पाठक साहब, बोलिए बोलिए पाठक साहब। देखिए, मैं बताया ना कि ये लोग निगेटिव राजनीति के अलावा कुछ जानते नहीं है, सिर्फ निगेटिव बातें करना ही जानते हैं। जहां तक युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा के महाराष्ट्र के चुनाव में 76% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 76% ऑन रिकॉर्ड, आप गूगल करके देख लीजिए। 76% फर्स्ट टाइम वोटर, सेकेंड टाइम वोटर, थर्ड टाइम वोटर, 76% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अगर बेरोजगारी 32 में सिर्फ से एक 30 जगह सीटें है, भारतीय जनता फिर आप पार्टी बीच जीत में गई बोले, होगी। बीच में मत आजमी साहब बोलिए, जरा सुनिए ना उनका, बीच में सुनिए, मत बोलिए। इनके बीच में कोई ना आपके बोलिए, बीच में बोलते नहीं रहने बोलना दो। है। 32 में से 30 आपके सीटें, बीच में नहीं बोलना है, बीच 76% में वोट मत मिला। बोलिए। आजमी साहब और सुनिए 32 में सुनिए से ना, 30 उसके बाद सीटें सुनिए, जीत उसके गया। बाद बोलिए ना, पहले सुनिए तो इन्हीं सही को पाठक बुलवा साहब लीजिए क्या ना, बोलते हैं। बोलिए इन्हीं बोलिए को पाठक बुलवा साहब। लीजिए। 76% फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वोटर। 76% भारतीय जनता पार्टी को इस महाराष्ट्र में जो वोट किया है। और बेरोजगार तो है, सही एक युवा बेरोजगार है, इसमें नो डाउट। वो 54 साल 56 साल का युवा बेरोजगार है, घूम रहा है बेचारा। जॉर्ज अंकल जो लिख के दे देते हैं उसी स्क्रिप्ट पे चलता है, अपना तो कुछ काम कर नहीं रहा है। तो 56 साल में युवा ही बना रहेगा, उसी की स्क्रिप्ट पे ये लोग आते हैं बोलने के लिए। इस कितने बार परसेंट युवाओं को इस रोजगार बार दिया इस आपने? बार इस बार जवाब इस बार दीजिए, युवा कितने परसेंट युवाओं इस को बार रोजगार दिया आपने युवा साल में? महिला इस 2 बार करोड़ लोगों युवा को रोजगार देने महिला। वाले थे ना अरे 2014 से सुनिए लेके तो अब बता तक। रहा हूं, सब सुनने अब की इन्हीं को बताइए क्षमता बोल तो कितने रखो, लोगों को रोजगार दिया आपने? सुनने की क्षमता तो नहीं, रखो। जवाब दीजिए ना, खाली जिस सुनाइएगा। अरे जाओ प्रकार भैया, जिस जाना जिस ना, प्रकार पहले 8 बजे। सुनाइएगा, जिस जवाब दीजिए प्रकार कितने लोगों को रोजगार जिस दिया प्रकार आपने? बताइए इस बार जनता को, सुनिए कितने ना, लोगों को रोजगार दिया सुनने आपने? की क्षमता रखो। अभी अरे भाई, अभी क्षमता यही पहले सारे जवाब दीजिए, मुद्दे सुनेंगे लेकर ना। के हरियाणा में गए सुनना थे। चाहते हैं कितने लोगों हरियाणा को में रोजगार दिया आपने? 86%, हरियाणा में 86%, वो रो अरे रहे थे। हरियाणा 86% और ये युवाओं छोड़िए, ने कितने भारतीय जनता पार्टी पूरे को वोट देश में किया। हर लेकिन साल ये 2 यही 50% करोड़ सारे लोगों को से भी रोजगार कम देने था। वाले थे। कितने ये जो लोगों को मुद्दे रोजगार दिया उठा आपने? रहे हो बताइए। युवाओं के, यही सारे मुद्दे लेकर के गए थे ये हरियाणा देखो, के ये अंदर। की और बात कर हरियाणा दिया। में 86% भैया, युवाओं ने सच बोलो, फर्स्ट टाइम सच बोलो वोटर्स भाई ने साहब। नहीं कर रहे ना 86% तो ने भारतीय यार, जनता गूगल पार्टी पे को वोट दुनिया का किया। बेकार सबसे है। बड़ा झूठा वोट टाइप किया। करिए। मैडम को सुनिए इससे बुरा पाठक क्यों जी, लग रहा है? गूगल आप पे दोनों दुनिया की का एक साथ सबसे बोल बड़ा रहे हैं, फिर झूठा भी टाइप नहीं लग करिए, रहा देखिए है। किसका नाम निकल के आता है। राइट, डॉक्टर सीमा मलिक हैज नॉट स्पोकन फॉर सम टाइम। डॉक्टर आपसे सीमा मलिक आप बताएं। पाठक साहब आपके पास आता हूं मैं। पाठक साहब आप उसके बाद सोशल एक मीडिया एक कर इंट्रोडक्शन रहे हैं ये दीजिएगा। ना, बीच बीच में बोलते रह रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे बीच हैं। बीच में पाठक बोलते साहब, जा रहे हैं। देखिए, पाठक साहब गूगल एक पे सेकंड। सबसे बड़ा झूठा आजमी देखिए साहब एक किसका नाम आता है। सेकंड। आजमी साहब एक मिनट। We have Dr. Seema Malik with us. She is not ये spoken for सवाल some पूछ time. करके फिर Please, मैंने बोला gentlemen नहीं, have the आपने बोला courtesy. कि बोला Gentlemen have the बुला courtesy. लेते हैं Allow Dr. Seema Malik to speak, please. Dr. Seema Malik, जो अभी अभी अरशद आजमी साहब ने कहा और जो अभी अभी अजय पाठक जी ने कहा, अजय पाठक जी ने क्लियर कट कहा कि 76% youth have voted for the BJP in the Maharashtra election and 86% youth have voted for BJP in Haryana. आपको क्या लगता है कि क्या यूथ जो है, जो युवा पीढ़ी जो है महाराष्ट्र की, वो भी क्या भारतीय सोचिए क्या जनता पार्टी का महाराष्ट्र में समर्थन जीत करेगी? जाएंगे। मैम बहुत बड़ा मेरे ख्याल से प्रदेश है, यहाँ पे 288 सीटें हैं, ये हरियाणा नहीं है। और अगर बेईमानी करके आप जीत भी गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और देखिए, ये कहना कि वहाँ के मुद्दे खत्म हो गए हैं, हरियाणा में भी 37 सीट्स आई थी कांग्रेस की,
ऑल्दो हमारा कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर है। मैं कहती हूँ 37 सीट्स आई थी, एंड वोट शेयर भी में भी शायद मेरे ख्याल से 1% से भी लेस कुछ Less than 1%. अंतर था उनका। 39.4 and और आज 39.9. और आज भी हरियाणा के मुद्दे वहीं पर हैं, वो चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे वहाँ पे महिला हो, और या चाहे वहाँ के पहलवान थे या जो किसान है। आज अगर आप ये सोचते हैं कि आप हरियाणा जीतने हैं इसलिए वहाँ के मुद्दे खत्म हो गए, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों या चाहे वो नौजवानों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका, आज किस तरह की नौकरियां कर रहे हैं लोग, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। आप तो खुद ही देख लीजिए, चाहे हॉकर की एक एयरपोर्ट पे एक हॉकर का वो निकलता है, वैकेंसी निकलती है, तो उसमें हजारों लोग आकर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग कोई लोग हैं। केवल डेटास देने से कुछ नहीं होगा कि आप डेटास दे दीजिए कि हाँ हमने इतना परसेंटेज हो गया है। डेटास में भी आप सीएमआई के डेटास मानते ही नहीं है, आप केवल बात करते हैं कि हम मतलब एनएसएसओ के डेटास मानेंगे। तो ये डेटास देने से कुछ नहीं होता। आज भी यहाँ पर बेरोजगार नवयुवक घूम रहे हैं, वो लोग पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं, जाके ड्राइवर्स की नौकरी कर रही हैं। तो ये एक बहुत मतलब एक ऐसा सत्य है इस देश का। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ की महिलाएं बहुत खुश हैं और यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। सेम चार्जेस इंडिया अलायंस पे लगे कि आपने तेलंगाना में जो 6 वादे किए, 6 गारंटी वो फेल किए, जॉब्स देने के बाद थे, आप फेल हो गए। हिमाचल प्रदेश में 5 लाख यूथ को आप जॉब देने वाले थे, वहां पर आप फेल हो गए। आप 1500 हिमाचल प्रदेश में भी प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं दे पाए। आगे जाके कहते हैं इवन इन कर्नाटका यू हैव फेल्ड इन द प्रोमिसेस, इंडिया अलायंस हैज फेल्ड इन द प्रोमिसेस। जो भी प्रॉमिस किया था बहुत सारे स्कीम्स के इंक्लूडिंग जॉब्स, यू हैव फेल्ड। कभी नहीं दिखते आपको डॉक्टर सीमा मलिक, यस। अरे सर, आपको हमारे ही फेल्योर देखते हैं, इनके फेल्योर नहीं दिखते। इतने बड़े बड़े फेल्योर जो यहाँ पर हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो अनएम्प्लॉयड लोग यहाँ पर घूमते हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ते। जो वैकेंसीज में होती हैं उनमें इतने लोग आके इकट्ठे होकर हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, वो कौन से लोग हैं सर? Ma'am, we are not sure if the Karnataka and Himachal Pradesh schemes are a failure yet. क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा था वो, क्योंकि आप लोग सब लोग इकट्ठे बोल रहे थे, मैं बोल नहीं पाया। सीधा रमैया साहब जो हैं आपके माशाल्लाह मुख्यमंत्री जो हैं कर्नाटका के, और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जनाब, क्या नाम है उनका साहब, जो भी नाम है उनका, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि सेंटर पे जो हमारा जीएसटी का पैसा पड़ा हुआ है आप लोग उसको रिलीज नहीं कर रहे। 10 महीने से हमें पैसा नहीं मिला है, और अगर हम पैसा देंगे तो कहां से देंगे? सीधी बात है। तो बात सही है कि जीएसटी का पैसा नहीं देते लोग। बट एचपी के सीएम ने टॉयलेट टैक्स डाल दिया डॉक्टर सीमा मलिक जी। टॉयलेट टैक्स, हर टॉयलेट पे टैक्स कर दिया। मोदी साहब कह रहे हैं मैं टॉयलेट बना रहा हूं और आप टॉयलेट पे टैक्स कर रहे हो। एक बार किसी ने शायद कह दिया होगा, उन्होंने उसी दिन बोल भी दिया था कि टॉयलेट टैक्स हम नहीं लगा रहे हैं, बट सिंस आप लोग इतने दिन से उसी का रोना गाए जा रहे हैं, टॉयलेट टैक्स। एक दिन शायद किसी ने बोला था वहां पर, उसके बाद उन्होंने क्लियर भी कर दिया था कि हम नहीं ले रहे हैं वो टॉयलेट टैक्स। Then why we are talking and discussing those things? It is not there. जी, लेकिन ये बात तो है। Why does the BJP not agree, ma'am? डॉक्टर सीमा मलिक, जो अभी अरशद आजमी साहब ने कहा, उसके बाद मैं अजय पाठक साहब के पास जाता हूँ। अरशद आजमी साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि भाई जो डिलीवरी बॉयज हैं, जोमेटो वाले, और वो दूसरा क्या है, वो एक और जो सर्विस है, ऑल काइंड्स ऑफ यू नो पीपल हु डिलीवर, और उनसे पूछे, वो कोई लड़का कहता है यार मैं तो इंजीनियरिंग मैंने करी है, मैंने बीए करी है, और बीए किसमें, इकोनॉमिक्स में, और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, वो बेचारा डिलीवरी कर रहा है। मैं कहता हूँ एज ही सेड, कोई भी काम बुरा नहीं होता, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट द यंग जनरेशन टुडे इज विलिंग टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो हायर एजुकेशन इसलिए तो नहीं करेंगे कि वो डिलीवरी बॉय बने। वेरी फ्रैंकली, अपने बच्चों के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती है सर। जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं जाकर, उनका क्या क्वालिफिकेशन है ना? अपने बच्चों के लिए ये चीज नहीं है, बाकी दूसरों के लिए सब कुछ है। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, झाड़ू लगाना बुरा नहीं होता, कुछ भी करना होता है। डॉक्टर मलिक, वी शुड नॉट ओपन इस तरह का उपदेश अपने बच्चों को भी देना। वो हर एक पे अप्लाई होता है मैम, वो हर एक पे अप्लाई होता है, भले वो कांग्रेस हो होता ना अप्लाई। शरद पवार साहब, ये कैसी बातें हैं कि आप पकौड़ा उन्होंने कितने मैच खेल लिए। डॉक्टर बन के इतनी मुश्किल से कोई बंदा बनता है, उसके बाद वो पकौड़े बनाने चले हैं। दैट्स वेरी समथिंग वेरी, ऐसी बातें करते हैं लोग, कैसे तर्क देते हैं, और आप लोग सुनते भी हैं, और आप हम ही को बोलते हैं कि आपके गवर्नमेंट ने ये नहीं अजय पाठक साहब, अरे आपके पास डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर क्यों नहीं होता? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के देखिए बजाज साहब, जी बोलिए, बजाज साहब हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं आज की तारीख में,
वो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज कैसे बन गए सर, ये तो बता दो। सर वो बताइए। मना कर देंगे, वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं अरे करते तुमको हैं बोलने तो लोग, दीजिए। इसीलिए कभी सुधरते भी नहीं हैं। हाँ बोलने देते हैं सर, हम चुप हो बट जाते डॉक्टर हैं, सीमा चलिए। मलिक, मोदी बस साहब ने बोलिए, कहा बोलिए, कि बोलिए। परिवारवाद के खिलाफ मैं एक जंग छेड़ रहा हूं, परिवारवाद के खिलाफ मैं 1 लाख यूथ को जो नॉन पॉलिटिकल है बजाज उनको साहब, मैं पॉलिटिक्स में बोलूं? लेके आकर परिवारवाद को खत्म करना चाहता हूं। हाउ डू यू सी दैट कमेंट डॉक्टर मलिक? अरे सर कोई भी योजना निकाल देते हैं, तो अब बोल रहे 1 लाख लोगों को पॉलिटिशियन बनाएंगे। अभी बोल रहे थे कि परिवारवाद में, अब जम्मू एंड कश्मीर में इतना इन्होंने परिवारवाद का हल्ला मचाया, अपना परिवारवाद नहीं देते, कोई असर हुआ पब्लिक के ऊपर? आखिर जो लोग वहां पर बने हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हैं या कांग्रेस है, जिसपे इतना हल्ला मचा रहे थे ये लोग कि परिवारवादी हैं, आखिर जिताया ना उनको पब्लिक ने। तो इन बातों का कोई असर नहीं होता आजकल, सबको पता है कि कितने परिवारवादी आपकी पार्टी में, उनका नाम लेना अजय शुरू पाठक जी, करेंगे तो। बोलिए सर। बजाज साहब, मैं बोलूं? बोलिए सर, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए, आप ही तो बोल रहे हैं। देखिए ये लोग कितने फ्रस्ट्रेशन में हैं। हाँ। बोलते ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ये तीनों पार्टियां कितनी फ्रस्ट्रेशन में हैं कि जैसे ही बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोलेगा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, और जैसे ही कोई एंकर बोलेगा, सवाल इनसे पूछ दिया कर्नाटक और वहां के बारे में, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो भाई हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। आपने पूरे उसमें सिर्फ बीजेपी के ऊपर प्रश्न उठाया, एक प्रश्न अगर इनके विपक्ष वाले के ऊपर उठा दिया तो भाई हमारे ऊपर कोई प्रश्न मत उठाओ, हम तो दूध के धुले हैं, हम परिवारवाद हमारा नहीं है। हमारे परिवार में तो लोग एजुकेटेड है, वो लोग नौकरी नहीं करते, उनको नौकरी करने की जरूरत क्या है। जिन लोगों ने पिछले 60-65 सालों में लूट करके रखा है और उन्हीं परिवार के लोग एमपी एमएलए बनाते रहे आप। एक परिवार है मुलायम सिंह का, एक परिवार है गांधी का, और मुलायम सिंह के परिवार में 117 लोग, मुलायम सिंह के परिवार में 117 लोग राजनीति में हैं। 5 लोकसभा में हैं, 7 विधानसभा में हैं, 13 लोग 12 लोग विधान परिषद से रिलेटेड हैं, और पंचायती राज में 56 लोग हैं। आप निकाल के देखिएगा, 56 लोग पंचायती राज से रिलेटेड लोगों में हैं। तो ये परिवारवाद उनको क्यों, सब वो तो रोजगार कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनका तो रोजगार बढ़ रहा है। और एक पीढ़ी 5 आजादी के बाद से 10 जनपद में कब्जा करके बैठे, सबसे एजुकेटेड लोग और सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी इस देश का युवा तो अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के कोई स्वरोजगार करने लगे, कोई स्वाभिमान की नौकरी करने लगे, तो वो तो गलत कर रहा है, उसको करने का हक नहीं है। उसको सिर्फ नौकरी साहब नौकरी, अगर वही तो मैं आपको आंकड़े दिया, अगर बेरोजगार होता युवा यहाँ का तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती क्या। हम 10 साल इनकी सरकार देख लीजिए, 2004 से 2014 तक जो सरकार चलाए 40-44 सीटों पर सिमट के रह गए। हम 10 साल सरकार चलाए, सबका उत्थान किए, गांव गरीब किसान का उत्थान किए, इसलिए 240 सीटों पे आए अकेले। 36 पार्टियां मिलकर के 232 पे सिमट गई। इस देश की जनता ने 232 पे सिमटा के रख दिया, और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दिया। 240 सीटें 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी, 10 साल की, ये विकास का एजेंडा है। ये विकास के एजेंडे पे हम चुनाव लड़े, और विकास के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, और विकास के एजेंडे पे ही इतिहास में तीसरी बार हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी है, पूरे इतिहास में तीसरी बार सरकार बनी। फिर मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा, अरे तीसरी बार सरकार बोलने ही दूंगा। हमारी सरकार तीसरी बार सरकार बनी और विकास के एजेंडे पे बनी है। इनके पास जो एजेंडे लेकर के गए थे, हरियाणा के पहलवान किसान, हरियाणा के, फिर आप बीच में बोलने लगे। आपके बीच में बोलने से तो आपको तकलीफ हो रही है, आपके बीच में बोलने से आपको तकलीफ होने लग रही है। जब आप बोल रहे थे आपको डिप्रेशन आ जा रहा है आपके बीच में बोलने से, और हमारे बीच में बोलने से आपको बड़ी खुशी हो रही है। असल में पाठक साहब बोलिए। हम सबसे कम जवाब बोल रहे थे पाठक साहब चुप हो गए। मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो बोल रहे आप ही बोल रहे हो। सवाल जो किया उसका सुनो तो। हरियाणा की जनता ने इसी घमंड को, कांग्रेस और तथाकथित इंडिया अलायंस के घमंड को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। यही मुद्दे लेकर के हरियाणा में गए थे, वही सेम मुद्दे
सेम मुद्दे महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की जनता सर, लेकिन जानती महाराष्ट्र है हरियाणा कि नहीं ये है ना। नसारा लोग हैं, इनको ये जब सत्ता में रहेंगे तो अडानी और अंबानी के प्लेन में घूमेंगे ये और इनके दामाद, और जैसे ही सत्ता से बाहर जाएंगे वैसे ही अडानी और अंबानी इनके लिए दुश्मन हो जाएंगे, तब सबसे प्रिय हो जाएंगे इनके लिए लेकिन अजय पाठक जी, एक जॉर्ज चीज का तो जवाब सोरेस दीजिए। और चाइना। सर, मैं इनसे कुछ बोल पूछो लूं? चाइनीज टेंट में सर, राहुल चाइना गांधी की क्या बात कर छोड़ो ना, रहे चाइना थे? के साथ तो और इनसे बाय द वे एक मेरा कांग्रेचुलेशन प्रश्न है। अजय पाठक जी, अजय पाठक जी कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। एक मेरा प्रश्न अरे है भाई, कांग्रेस चुप सर, कराओ सबसे उनको। पहले मुझे एक मिनट सर 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 आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दिस। एक मिनट जेंटलमैन एंड डॉक्टर सीमा मलिक। अजय पाठक जी, एक सेकंड। चाइना को लेकर के आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फाइनली एग्रीमेंट हैज बीन अराइव्ड एट ऑन द बॉर्डर। पेट्रोलिंग के ऊपर द चाइनीज आर्मी एंड द इंडियन आर्मी हैज फाइनली अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट एज ऑफ दिस मॉर्निंग। तो जो अप्रैल 2020 में जो सिचुएशन थी, इट इज नाउ बैक। सो फाइनली वी कैन हीव अ साई ऑफ रिलीफ। थैंक गॉड फॉर दैट। दोनों जी आपने- अजय पाठक जी। Yes, पीछे पीछे अपने फोर्सेस को लिए। जी, बोथ हैव विड्रॉन। हम लोग जो 6 हमने चोटियां जो थी, पीक्स जो थी, उनको एग्री कर लिया कि भाई हम छोड़ देंगे। चाइना ने, जो चाइना अंदर घुसाया था, चाइना ने कहा कि भाई हम वापस जा रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन, फाइनली। नहीं देखिए जी। देखिए वो ना कोई वो घुसा है, चाइनीज ना कोई वो घुसेगा। चाइनीज एजेंट उसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। जो चाइनीज एजेंट ना बैठे कोई हुए हैं इस घुसेगा, देश ना कोई में, घुसेगा। जो चाइनीज एजेंट इस देश में बैठे हुए हैं, जो डोकलाम के समय चाइनीज एजेंट जाकर के उसके टेंट के अंदर थे, बाद में उन्होंने बताया कि नहीं हम किसी भी चाइनीज एजेंट के पास नहीं गए थे। चाइनीज एजेंट बोल रहे थे हम किसी टेंट में नहीं गए थे। जब पिक्चर बाहर आ गई तो चाइनीज एजेंट उसको स्वीकार कर लिए। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ये जो 2012 में चाइना में जाकर के कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट साइन किया, वो क्या डॉक्यूमेंट साइन किया? सर, वो तो माँ बेटे आरएसएस ने जाकर भी के किया जो था, सर। डॉक्यूमेंट चाइना से साइन करके आए, सर, वो तो आरएसएस ने भी किया। पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ले आते? क्या डॉक्यूमेंट साइन किया है इन्होंने? सर, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये सर। डॉक्यूमेंट चाइना से क्या साइन बात करके कहाँ से आए? आ गई? पाठक साहब, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आरएसएस ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन किया है, सर। अब इनको बहुत बड़ा बोलने लगा important कि ये चुप बात कराओ कहाँ से आई? महाराज, चुप करा दो। देश की बात होगी तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये कौन सी बात है? बट आजमी साहब, मोदी साहब ने चार्ज लगा कि आप देश विरोधी तत्वों के साथ मिले हो। चाहे आर्टिकल 370 हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाइना हो या कनाडा में अभी जो स्थिति है, कांग्रेस ने हमेशा उनके साथ दिया जो देश को अटैक करते, देश के खिलाफ बोलते। आजमी साहब, देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, हालांकि मजाकन कहा था, पर ये कहा था कि आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे सबसे बड़ा झूठा, तो एक नाम निकल कर आता है, वो आप सर्च करके देख राहुल लीजिए गांधी। किसका नजर आता राहुल है। गांधी। मोदी सुनिए, मोदी सबसे बड़ा राहुल अभी गांधी। बजाज साहब इस ने देश जो में खबर गूगल बताई करो कि चाइना सबसे के बड़ा बारे में, मुद्दू कौन है? अभी बजाज साहब ने जो सर, खबर पाठक बताई साहब, चाइना एक के मिनट बारे में, बोल अरे मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया भाई साहब, बजाज साहब, सबसे बड़ा मैंने तो मुद्दू किसी का कौन है? नाम नहीं लिया। आप परेशान क्यों हो गए? सर, अभी पाठक अभी साहब, अभी अरे भाई सर, साहब, राहुल मैंने तो गांधी किसी का कौन नाम थे, नहीं अंकल? लिया, आप परेशान क्यों हो मत बोलिए गए? उनके बारे में। सबसे सुनिए सर, साहब, I like सुनिए। it. तो अभी बजाज साहब, आपने जो खबर, अभी बजाज साहब, अभी जी। गूगल करो, बजाज साहब, ये देखो मैं जी, गूगल बोलिए, मैंने करके तो सर, किसी आपको का दिखा नाम दे रहा नहीं हूं। लिया भैया, आप क्यों नाराज होने लगे? पाठक साहब, एक सेकंड, सर। सर, कि पाठक सबसे साहब, सुनिए मेरी बात। बेवकूफ सर, कौन वी है? हैव प्लेंटी सबसे ऑफ बड़ा टाइम। झूठा सर, ये कौन वो वाला शो नहीं राहुल है। गांधी। वी आर नॉट बाउंड बाय अरे भाई, टाइम। मैंने तो अगर किसी आप का चाहें नाम आप नहीं सारी लिया। रात बैठ सकते हैं, कोई मैंने तो टेंशन ये नहीं। कहा कि बोलिए आप इसको गूगल पे सर्च करिए सिर्फ। जी। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। जी, बोलिए। लेकिन आप अभी कुछ बोलने बजाज वाले साहब हैं। ने जो खबर चाइना के बारे में कुछ चाइना बोलने को वाले हैं, लेकर- बोलिए। बता रहा हूं आपको कि भाई सबसे मैंने तो बड़ा नहीं लिया, आप झूठा सर्च है करके राहुल देख गांधी। लीजिए। आजमी अगर साहब, आपकी बोलिए। नजर और एक ठीक चीज है और, तो सर्च करके देख सबसे- लीजिए। आजमी साहब, बालाकोट स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, कनाडा वाला इश्यू हो, आर्टिकल 370 हो, हमेशा उन लोगों के साथ कांग्रेस खड़े हैं जो पाकिस्तान जो अरे है, भाई, तो आप पाकिस्तान क्यों के आंदोलन परेशान का होते हैं? समर्थन आपको तो करते हैं। खुश होना चाहिए कि जो अपोजिशन आप लीडर है वो परेशान हो आपकी रहे नजर थे। में कुछ है नहीं, भाई, आपको तो खुश इसलिए होना तो चाहिए सरकार कि भाई इस एक देश की कमजोर जनता आदमी ने आपके बना सामने दिया, इसलिए तो कांग्रेस से सरकार खड़ा है। कर दिया है। 1 लाख सुनिए, करोड़ रुपए सिरोसे संकल ने मैंने खर्च उससे करने के ये बाद कहा भी था, नरेंद्र मोदी तीसरी बार ये सरकार परेशान हो बना गए ले बेचारे, गए। अब वो बोलने ही नहीं दे रहे। अब इसीलिए एक तो मिनट, कांग्रेस आजमी साहब, एक सेकंड। इसीलिए तो आजमी साहब, एक सेकंड। पाठक साहब, अभी आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्चे मोदी साहब को हराने के लिए। वो पैसे मुश्किल कहां आए, से कहां मुझे- गए, किसके पास गए, आपको शायद इंफॉर्मेशन होगी। तो वो शख्सियत
या वो शख्सियतें या वो हस्तियां या वो ऑर्गेनाइजेशंस अभी जेल में क्यों नहीं है? आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो उनको जेल में डालिए। कैसी सरकार है आपकी कि 1 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं खुफिया काम करने के लिए यहाँ पे, भारत विरोधी काम करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के सिर्फ आप टेलीविजन शो के ऊपर बोल रहे हैं? सर जेल में डालिए। कैसी सरकार है आपकी? सुनिए, बोलिए, जवाब सुनिए ना। हाँ बोलिए ना सर प्लीज। देखिए, हजारों लोग जेल में हैं, वही एजेंट भी हजारों जेल में हैं और अभी फिर जेल में जाने वाले हैं। हजारों और उन्हीं पत्रकार एजेंटों के साथ, उन्हीं आतंकवादियों के साथ ये कांग्रेस उनके जनाजे में जाती है। उन्हीं वही एजेंट है जो अरे मारे यार। जाते हैं, जिनके कांग्रेस जाती जनाजे है। में कांग्रेस जाती है, कांग्रेस। जिनके जनाजे वही में है। कांग्रेस जिनके- खड़ी होती है, जिनके नेताओं वही को एजेंट आतंकवादियों ने मारा है। वही जेल में बंद अरे यार, ये है, क्या वही है? एजेंट थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बोले जा रहा है, बोले जा दामाद रहा है। बन के आते थे, दामाद बन के प्रधानमंत्री कार्यालय में आते थे। वही एजेंट आज मौत की भीख मांग रहे हैं जेलों में। वही एजेंट सर, ऐसा है कि- क्या बात है, आजाद क्या साहब। जवाब है? और सर, आगे ऐसा है कि ये जो आपने आप दरवाजा चिंता खोला ना सर, ये करिए, बहुत बड़ा है। इस देश को अस्थिर सर करने मैं वाले 42 साल एजेंट से भी जेल पत्रकारिता में जाएंगे। हूं। 42 साल हो गए मुझे एज ए जर्नलिस्ट। अगर मेरा मुंह खुल गया तो बहुत ज्यादा खुल जाएगा सर, जाने दीजिए। अभी मैं तो भारतीय साहब बताइए जनसंघ ना से कि लेकर के प्राइम भारतीय मिनिस्टर जनता पार्टी कार्यालय में कौन तक दबाव एक एक को बंद जानता करता हूं, है? आपको भी मालूम है। सर आराम से रहिए। अब आप अरशद आजमी साहब को बोलने दीजिए। आजमी साहब आप कुछ बोलने जा रहे थे, बोलिए। डॉक्टर मलिक आई एम कमिंग बैक टू यू। जी आजमी साहब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। मैं ये बोलना आप देखिए भैया, बस भाजपा 2 के जो मिनट प्रवक्ता में हैं, आपके चैनल पे आ रहा हूं। जी, 2 बोलिए। मिनट कर रहा हूं। भाजपा आजमी के साहब जो बोलिए। प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा को आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत का एजेंडा जो पूरे देश में फैलाया है, तो किस तरह से लोगों के जहन को टर्न किया है, किस तरह उनके जहनों में लोगों के लिए नफरत भर दी है, उसका एक जीता जागता सबूत आज आपके इस चैनल पर दिखाई दे रहा है भाजपा प्रवक्ता पाठक साहब के रूप में। जो आपने चाइना वाली बात कही थी, तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि भाई गूगल पे सर्च करिए सबसे बड़ा झूठा कौन, वो बेचारे नाराज हो गए। अगर ये बात सच है जो अभी आपने जो खबर दी, चूंकि ये सही आपने खबर दी, तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे कि कोई अंदर नहीं आया? तो देश का प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, ये सवाल सर, खड़ा झूठ होता नहीं है। बोला। और इस बात का अंदेशा होता है कि आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में भारत देश की सिक्योरिटी को Sir, he had no लेकर choice. देश के प्रधानमंत्री कोई भी बड़ा झूठ बोलकर इस देश को खतरे में डाल सर सकते हैं। सर आजमी साहब ये एक बहुत सेकंड। बड़ी आजमी बात बन गई साहब है। आप मेरी बात तो सुनेंगे ना सर? अरे कुछ अरे पाठक साहब मेरी बात तो सुनिए। सर ये देश का मामला है। एक सेकंड सर, ये पार्टी का मामला नहीं है। अजय पाठक जी एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए सर प्लीज। द प्राइम मिनिस्टर हैड नो चॉइस। कान फटे तो हट अरे जाओ। पाठक साहब एक सेकंड सर, आप ही की बात बोल रहा हूं, आप ही के पक्ष की बात बोल रहा हूं। एक मिनट क्यों हटूं भाई? अजय पाठक साहब, आप ही के पक्ष की बात बोलने वाला हूं। तकलीफ आप- प्रधानमंत्री जी के पास कोई चॉइस नहीं थी उस टाइम पर, बिकॉज वेरी सेंसिटिव नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन। इसलिए कहा गया था कोई नहीं आया और कोई नहीं गया। वेरी फ्रैंकली अच्छा, इसलिए कहा गया हमें था। बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त, एक सेकेंड, जैसे राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने डेलीगेशन का हेड बना करके भेजा था जिनीवा। उस वक्त के जो पॉलिटिशियन थे सब समझते थे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, उसके ऊपर ज्यादा बहुत क्लियर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वेरी फ्रैंकली दैट वाज द रीजन व्हाई अ स्टेटमेंट वाज मेड इन पार्लियामेंट। कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, बिकॉज वेरी सेंसिटिव नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन। They didn't want to spoil them. Today we are willing to discuss them. That's it. That is the only reason. कोई प्रवक्ता कार्यालय में खाली हो तो उसको भेजिए। जी, उस पर अरशद आजमी साहब, मोदी साहब का कहना कि 25 साल अमृतकाल का 2047 में विकसित भारत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस प्रकार से इंडिया का सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्राइड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल के विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सब जगह जो वादे किया, वो पूरे जो इनॉग्रेशन किया उसका टोटल समर्पण भी किया, टोटली उन्होंने ओपन भी किया। तो क्या ये दिख नहीं रहा है, इंक्लूडिंग अटल सेतु वगैरह जो डेवलपमेंट आपके ये सामने? क्यों फ्रस्ट्रेशन में है? आजमी साहब, आप क्यों फ्रस्ट्रेशन में हो? अरे पाठक साहब क्या हो गया? बोलिए आजमी साहब। तो दुनिया में पूछ रहा हूं, बजाज, आप बजाज साहब हैं क्या? व्यवस्था है। आपका बात नाम ठीक मिसेस है, अपनी बजाज जगह है? सही है। मैं बजाज साहब से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। बोलिए ये बोलिए क्या- आजमी साहब, बोलिए आंसर।
विकसित भारत के सपने, 25 साल अमृतकाल का टोटल देखिए डेवलपमेंट। मैं ये बात कहना चाह रहा था, दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलग अलग कारण है। कोई एक कारण किसी ने कोई एक बनकर आया, वो कुर्सी पे बैठा और उसने जादू की छड़ी चला दी और दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ऐसा नहीं है। और देश के अधिकतर लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन ये जो बार बार ये जो नारा अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री लगाते हैं, क्या मुझे ये बताइए कि ये पिछले 5-10 सालों में हुआ कि अचानक हम दुनिया में 20वीं 25वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे और सीधे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पे आ गए? नहीं, इसकी बुनियाद रखी गई। इसकी बुनियाद 1947 से पड़ी। 1947 से ये सफर चलता चलता 2024 तक आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौर में जिस तरीके से पैसे को बर्बाद किया गया, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं में अपने इश्तिहार पर, अपने भ्रष्टाचार पर, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, इस देश के पैसे को बर्बाद किया, उसका नतीजा ये निकला है। अभी अगर आप कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है साहब, पहले ही हम 115 कितने में आते थे भुखमरी में, अब उससे 3 पायदान और नीचे आ गए। तो विकसित भारत जब होगा जब इस देश के हर नागरिक के पास खाने के लिए अनाज होगा। अनाज पर उसका अपना पैदा किया हुआ अनाज, उसकी अपनी कमाई से कमाया हुआ अनाज, अपनी कमाई से खरीदा हुआ अनाज जब उसके पास होगा, तब इस देश को आप अंदरूनी विकसित भारत देश कह सकते हैं। आज जो है हम सिर्फ आंकड़ों के खेल में अपने देशवासियों को गुमराह कर रही है ये सरकार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन्हें जरूरत है ईमानदारी से इन तमाम कमियों पर काम करके इस देश को सही मायनों में विकास की तरफ ले जाने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में भी नजर नहीं आता है। डॉक्टर सीमा मलिक, where we are sitting, BKC ये शरद पवार जी का देन है। शरद पवार जी converted the entire BKC, which was a wetland, into a fantastic commercial center, financial capital of not only India but a financial capital for the whole world. ये शरद पवार साहब। बट बीजेपी का कहना कि आपका काल में काम बहुत स्लो होता था। जैसे अटल सेतु 1972 में प्रपोजल आया, 1984 में अप्रूव किया पीएमओ, 2016 रिवाइव किया मोदी साहब ने, फाउंडेशन ले किया, और 2024 में मोदी साहब ने इनॉग्रेशन किया। तो मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स आप सब संकल्प करते रहे, मगर मोदी जी ने उन्होंने लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, इनॉग्रेट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? देखिए, मैं इसके बारे में बोलूंगी और इसके अलावा मैं ये जो इकोनॉमी वाली बात है उसके बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, इकोनॉमी में फिफ्थ, यू बोस्ट दैट आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वर्ल्ड की, पर आप कभी भी, मैंने पहले भी हमेशा कहती रही हूँ, जिस तरह से जो अमीरों और गरीबों का गैप है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ओनली 1% पीपल हैव गॉट द 40% वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। तो केवल 2 लोगों का प्रमोशन करने से आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी जहाँ तक आप ये जो स्लो पेस वाली बात बता रहे हो, एक इसके लिए देखिए, हम लोग के यहाँ जो भी काम होता था थोड़ा सोच समझ के, एक ब्लूप्रिंट बना के, कुछ सोच के होता था। यहाँ पर देखिए इनकी इतनी जो पेस है इस समय काम करने की, आप एक मूर्ति बनाते हैं जो कि 8 महीने में बिल्कुल टूट के गिर जाती है, तो ऐसा काम करने का क्या फायदा है अगर हर जगह आपके क्रैक्स पड़े हुए हैं, राम सेतु और वाटर सेतु। तो इस तरह का काम करने का मुझे नहीं लगता कि आप 2.5 लाख गुना लागत आपकी ज़्यादा लगती है किसी भी चीज़ में, है ना। आप सड़क बनाते हैं उसमें 2.5 लाख गुना लागत जाती है और उसके बाद उसमें कुछ काम नहीं होता। तो इस तरह की मुझे लगता नहीं कि इतनी फास्ट पेस की भी कोई ज़रूरत होती है। हर चीज़ को देख के ना, हर चीज़ को थोड़ा ठीक से बनाना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप मूर्ति बनाते हैं कल गिर जाती है, और इतना करप्शन है उसमें, इसको कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होते ये लोग। और इनफैक्ट इनसे कहने का कोई फायदा भी नहीं है। और आप कुछ भी कहिएगा तो वो बोलेंगे कि नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते किसी भी चीज़ को। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इस तरह का क्रिटिसिज्म कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में कुछ होता नहीं था। एंड कंपेयर करना इस तरह से, और मतलब मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगती कि जिसका मुझे बहुत आंसर देना है आपको। अजय पाठक जी, फाइनली स्लो पेस और समथिंग। सारे लोग जो हैं, भले कांग्रेस के हों, शरद पवार एनसीपी वाले हों, शिवसेना के लोग हों, दोनों शिवसेना हों, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, जितनी भी पार्टियां, सर वो सब भारत के लिए काम करते हैं। आप उनको दुश्मन क्यों समझते हैं अपना, अजय पाठक जी? बजाज जी, हम किसी को दुश्मन नहीं समझते। दुश्मन ये लोग भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये अपना दुश्मन मानते हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मान के चलते हैं कि ये सत्ता में नहीं आनी चाहिए, सत्ता में आ गई। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि परिवारवाद के बाहर का व्यक्ति सत्ता में कैसे आ सकता है। ये राजा महाराजा की जो जो एक परंपराएं चला रही थी कि 10 जनपद के अलावा या गांधी फैमिली के अलावा इस देश में कोई राज कर ही नहीं सकता। इनको ये विश्वास था कि इस देश की जनता हमारे लिए ही काम करे, हम जो चाहें वही इस देश की जनता करे। और एक चाय बेचने वाला आदमी, एक गरीब परिवार का आदमी, आप देखिए हमारे जो 22 मुख्यमंत्री हुए वो साधारण परिवार से लोग हैं। हमारे जो तीनों प्रधानमंत्री हुए, दोनों प्रधानमंत्री हुए, तो आप किसी को ले लीजिए, वो दोनों साधारण परिवार से, साधारण पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं। तो ये कांग्रेस के प्रथम परिवार को हजम नहीं है। कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है इसको वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है। इसलिए राजनीति में ये सारी चीजें प्रॉब्लम खड़ा हुई। अटल जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन की सरकार चली, तो एन प्रकार कांग्रेस ने 13 दिन की सरकार को गिराया। उसके बाद जब 13 महीने की सरकार बनी तो उसको गिराया, एन प्रकार गिराने का काम किया। तो ये किसी भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है। ये कांग्रेस, ये सिर्फ कांग्रेस की मंशा है कि यहाँ पे जैसे राजा महाराजा का राज चलता था वैसे 10 जनपद और गांधी परिवार का राज चले, और इस देश की जनता ने उसको नकार दिया। वो जो नकार दिया, इसीलिए ये देश में घृणा की राजनीति का उभार किया। और खास तौर से राहुल गांधी, जब से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की लीडरशिप आई है तब से नफरत और नफरत की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। नाम मोहब्बत का देते हैं और उनकी दुकान नफरत की चलती है। आप जहां जहां इस देश में आप देख लीजिए कि जब दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या किया, जो लोग भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, राहुल गांधी उसको समर्थन देने के लिए पहुंच जाते हैं। सोनिया गांधी जी, जो लोग आजमगढ़ में के आतंकवादी थे, दिल्ली में महेश शर्मा शहीद हो जाते हैं, उनके लिए सोनिया गांधी रोती नहीं है। रोती किसके लिए है? दिग्विजय सिंह ने आकर के टीवी पे बोला कि सोनिया गांधी जी इतना रोई कि वो चादर भीग गई जो चादर देने के लिए उनको भेंट करने के लिए गए थे। तो ये लोग इस देश से सिर्फ नफरत करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी एंड उनकी कंपनी, जो उनकी जो सोच है वो नफरत से भरी हुई है। इसीलिए पॉलिटिक्स में सिर्फ नफरत ही नफरत वो भर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार, जिससे हम प्रेरणा लेकर के काम करते हैं, वो संघ है। संघ और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए समर्पित पार्टी है। और ये इस देश के, इन्होंने इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने इस देश के टुकड़े किए। इस देश के टुकड़े करने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। सर, कांग्रेस ने तो देश को बढ़ाया है। पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ 19 स्टेट हुआ करते थे, एक सिक्किम को और जोड़ लिया गया कांग्रेस ने, तो देश को तो बढ़ाया है कांग्रेस ने। सर, आप कैसे बोल रहे हैं देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए? क्या बोल रहे हैं सर? अभी भी टुकड़े करने पे लगे हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। अरे सर छोड़िए ना सर, वो अजय पाठक जी, अभी तक आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे। ये कांग्रेस के खिलाफ इतनी घृणा ठीक नहीं है। और बाकी कांग्रेस और एनसीपी की लोग भी जो है, उनकी भी बीजेपी के खिलाफ इतनी घृणा ठीक नहीं है। हमारे लिए आप सब लोग एक हैं। देखिए, हम राजनीति करने आए हैं बजाज साहब जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। वैसा ही हम देने के लिए तैयार बैठे। क्या बात है सर, वंडरफुल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो हम भी आपको उल्टा वही देंगे, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। जी अजय पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सीमा मलिक, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आजमी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। मैं पाठक जी को एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, बड़ा अफसोस होता है ये जब ऐसी कोई बातें सुनाई देती हैं, जब लोग भारत माता की रक्षा और इसकी बातें करते हैं। पाठक जी, ये आरएसएस और भाजपा जनसंघ, ये वही लोग हैं ना जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, जो देश के जो देश को आजाद कराने वाले लोग थे। अंग्रेजों की लड़ाई में, अंग्रेजों की गोली से नेहरू मारे गए कि मोतीलाल मारे गए, कितने कांग्रेस के टॉप लीडर मारे गए, जरा बताओ तो कितने टॉप लीडर। 1925 तक, 1916 तक कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो अंग्रेज था। कांग्रेस किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई।
और आप अंग्रेजों के हो गया। अंग्रेजों की जी, अच्छा, जरा साहब, मेहरबानी बोलिए, करके बोलिए, पाठक जी बोलिए। जरा आप सुन लीजिए, बजाज साहब इनसे सुन पूछिए, लीजिए। कांग्रेस के सर, अकाउंट नेहरू किसने जी ने सर कांग्रेस के नेहरू जी पहले ने अध्यक्ष गोली सर नहीं एसपी खाई, बनर्जी थे। लेकिन कई एओ साल ह्यूम नेहरू साहब जी ने जेल में जरूर बंद बनाई, रहे लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने एसपी में। बनर्जी साहब वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। आप सर, मुखरी करते थे, आरएसएस सर मुखरी अंग्रेज करते कभी थे। नहीं बना कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट। हमको ज्ञान दे रहे हैं भारत माता की रक्षा करने के सम्मानित और पंडित देश नेहरू प्रेमी ने होने किसकी का आप ज्ञान शपथ ले देंगे। सके? किसकी आप शपथ आपका लेके? इतिहास बताइए, आप एक बताइए आरएसएस का एक लीडर बताइए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल गया हो, एक लीडर बताइए आप। किसकी शपथ लिए सर थे? पंडित एक लीडर आप नेहरू बताइए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 14 जेल गया बार हो। जेल गए, 9 साल तक जेल रहे, 9 साल तक जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने अपनी पूरी जिंदगी 9 गुजार दी। बरस तक जेल में आज रहे, आप ऑटो 14 के बार हेर-फेर उनकी से, गिरफ्तारी हुई। आज आप मीडिया के लाला द्वारा लाजपत राय, की वजह से लाला सरकार में लाजपत है। राय को मार दिया बड़ी गया बड़ी था, वो बातें भी करने कांग्रेस लगे के आप। प्रेसिडेंट रहे हैं समझे सर। ना, सुई लाला लाजपत राय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको भी मार दिया गया था। है। और जहां तक गोविंद बल्लभ पंत जी का सवाल है, उनकी तो गर्दन तोड़ दी गई थी। आखिर तक जब वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनका सिर भी बिल्कुल स्थिर नहीं रहता था, हिलता था। केसी पंत जी के पिताजी। जी अरशद आदमी साहब, वन फाइनल वर्ड टू यू, बोलिए प्लीज। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ये महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है जी। और महाराष्ट्र के, मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहराता हूं, महाराष्ट्र की जनता इसको अपनी अस्मिता की लड़ाई मानती है। महाराष्ट्र की जनता ये समझती है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो महाराष्ट्र जो आर्थिक तो कितनी राजनीति सीटें आ रही है सर एमबीए की? देश में उसकी हैसियत को सर, खत्म करने के महाविकास लिए अघाड़ी की प्रयास कर कितनी रही सीटें आ रही हैं, अदानी के बताइए। हाथों आज ये मुंबई शहर को गिरवी रख रहे हैं, कल पूरे महाराष्ट्र को गिरवी रख देंगे। महाराष्ट्र इसका की पूरी जनता भी तरीके आपका से निकालने जा रही इसकी है। ये बात पूरी तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आ गई है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त दी। सर, 288 आने वाले में से कितनी? विधानसभा चुनाव में भी और आपको ये लोग बड़ी विधानसभा शिकस्त में देंगे। देगी। आरएसएस आपको महाराष्ट्र और विधानसभा मुंबई की में बड़ी धरती पे शिकस्त कामयाब देगी। नहीं होगी। ये शाहू महाराज, Right. ज्योतिबा फुले ये- और बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति डॉक्टर शिवाजी सीमा मलिक, how many की seats, है। ma'am? इसने कभी नफरत को उसी जगह अम्बेडकर नहीं डॉक्टर दी। सीमा आने मलिक, वाले लास्ट वक्त में टाइम भी शरद नफरत पवार को साहब जगह ने नहीं देगी। 54 सीट्स लिए थे। हाउ मच इज गोइंग टू कम मोर देन दैट, और कैसे करेंगे डॉक्टर मलिक? हराने वाली पार्टी को डॉक्टर सीमा मलिक, यू आर गोइंग टू क्रॉस 54। अम्बेडकर साहब के खिलाफ अगली कौन बार है? इनका समय तय कर दिए बजाज साहब। किसी कांग्रेस ने किया था। अगली बार इनका कांग्रेस समय तय ने कीजिए। गोंदिया में जी। अम्बेडकर साहब को हराया डॉक्टर था। सीमा मलिक, किसी how many कांग्रेस seats? ने Dr. Seema Malik, how many seats is the MBA going to get? Out of them, how many Sharad Pawar? किया था। जी। और अमेरिका में जाकर के अरे अजय पाठक जी, डॉक्टर मलिक को तो बोलने दीजिए। आप ही एंकर बन जाइए ना शो के। सर आप एंकर बन जाइए शो के। आरकेबी शो की तरह इसको अजय पाठक शो बोल देते हैं सर। नो प्रॉब्लम, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी ए गेस्ट ऑन योर शो। सर आपके शो में मैं गेस्ट बन जाता हूँ। अगर ये जॉब जाती है तो निश्चित में आपके साथ अरे अजय पाठक जी, डॉक्टर सीमा मलिक को बोलने तो दीजिए। डॉक्टर मलिक, हाउ मेनी सीट्स इज द एमबीए गोइंग टू गेट मैम? ज्वाइन करूंगा। हाउ मेनी? 200। कितनी सीटें मैम? 200, 210, हाउ मेनी? मुझसे पूछ रहे थे हाँ डॉक्टर सीमा मलिक आपसे। जी, कितनी सीटें आएंगी? जी एमबीए की आई थिंक 190 200 190 to 200. Wonderful, absolutely And Sharad wonderful. Pawar साहब is going to cross that 54 seats margin last time जो acquire किया था। देखिए 8% हमारी अपनी पार्टी का इस बार 120 सीटें ले आएंगे। शरद पवार साहब इस बार 120 सीटें ले आएंगे। जबरदस्त सर, आपके मुंह में घी शक्कर। जी बोलिए मैम। तो डॉक्टर मलिक, पाठक साहब is more confident about पवार साहब। पाठक साहब को टोटल कॉन्फिडेंस है शरद पवार जी में। जबरदस्त। हाँ 120 सीटें ले आएंगे। सर पूरे अकेले। महाराष्ट्र को कॉन्फिडेंस है, पूरे महाराष्ट्र अकेले। को कॉन्फिडेंस है जी। पवार साहब पे, ये बात सब जानते हैं। जी और बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री जी को भी मुझे है। कहने की जरूरत नहीं आखिरकार है। जब प्रधानमंत्री जी ने पद्मा विभूषण से देखिए, चिल्लाने की उनको जरूरत नवाजा उनको था होती है, जिनका- तो ही हैड कॉल्ड हिम जिनका हिज गुरु। जी बोलिए ना, बजाज साहब मुझसे कुछ पूछे हैं? हाँ, आपसे नहीं पूछा, अभी आपके पास आ रहा हूँ 1 सेकंड के बाद। जी सीमा मलिक जी, आप कुछ बोल रही थी, लास्ट सेंटेंस टू यू, मैं बोलिए। ये कह रही थी कि देखिए पवार साहब के ऊपर तो पूरे महाराष्ट्र को कॉन्फिडेंस है, इनफैक्ट पूरे देश को कॉन्फिडेंस But है you और must thank Ajay बहुत Pathak अच्छी साहब। सीट्स हमारी आएंगी और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कुछ चिल्लाने की जरूरत उन लोगों को होती है जिनको हारने वाली पार्टी को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। जी। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे चिल्ला अभी- के बताऊँ और तो अजय पाठक साहब, आपको दूसरों को कॉन्फिडेंस है क्या? अभी हम चिल्ला, बजाज साहब
सो अजय पाठक साहब, शरद पवार साहब 120 सीट अपने अपने बलबूते पर लेकर आएंगे, यानी एनसीपी एसपी विल गेट 120 सीट्स। साहब ये बता रही थी 55 सीटें ले आएंगे, 55 सीटें कौन लड़ बता रहे रहा है? हैं, मैंने कहा 55 सीटें लेकर के आएंगे। अरे मैंने अरे कहा, बजाज साहब बता रहे हैं, सुनिए अरे तो। मैंने कहा बताया? बजाज साहब बता रहे हैं, आप नहीं बता रही। बजाज साहब बता रहे 55 सीटें ले। बजाज साहब जितनी सीटें पे लड़ रहे हैं उतनी सीटें कहां से आ पाएंगे? दूसरी चीज क्रॉस करेंगे क्या? दूसरी चीज 90 बजाज सीट पे लड़ रहे हैं। साहब दूसरी चीज 90 सीटों पे लड़ रहे हैं, बता रही है 90 सीटों पे लड़ रहे हैं। अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ, 90 सीटों पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 90 सीटों पे लड़ रहे जी। हैं। तो क्या हो गया? बजाज कर साहब दिया तो सर वो तो उनकी पार्टी का कर मैटर दिया है ना सर, जाने दो तो ना। सुनिए, इनका कर दिया तो पाठक साहब उनका अभी कहना है कि धमकी आप मिलेगी, 100 कर क्रॉस दिया नहीं तो करेंगे, धमकी होगी, महायुति will not धमकी cross होगी, 100 धमकी सीट्स। बजाज साहब 100 सीट क्रॉस नहीं करेंगे आप। बोलिए सर, पाठक साहब बजाज साहब बोलिए। 225 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस बार चुन करके आने वाला है। 225, हरियाणा चलिए, के wonderful। चुनाव में जिस तरह से इनको शिकस्त दिया, उसी तरह से यहाँ की जनता मतलब बैठी हुई है EVM कि हैक इस करेंगे आप। घमंडिया गठबंधन को जो 99 का फीवर चढ़ा था, उसको पूरी तरह से तो मतलब समाप्त EVM कर यहाँ पर देगी। भी हैक होंगी। यहाँ की जनता वो जानती है कि डबल सर हर इंजन जगह की में सरकार 99% बैटरी चार्ज होगी। ये वसूली वाली सरकार कुछ नहीं कर सकती। जय हिंद, जय हिंद सर, जय वंदे हिंद, मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, Thank हर you. महादेव। थैंक यू डॉक्टर सीमा मलिक, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। अरशद आदमी साहब, बहुत मजा आया आपको इस मूड में देख करके, इसलिए थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद आप आए अरशद। लेकिन मूड में थे साहब, आदमी साहब आज मूड में थे, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ऐसे ही रहे सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद साहब, जय हिंद। That was nice. Fantastic. Except for the fact that Ajay Pathak Saab keeps talking. So, all the same. The point is, let's be very clear, I think Mr. Modi deserves our congratulations, irrespective of anything else, as far as China is concerned. They've been very patient, they've been very quiet, they've been very diplomatic. Something I would not expect of this government, but they've done it. चुपचाप चाइना के साथ negotiations करके, the state of the line of actual control has been brought back to what it was in April 2020. And I But think always that's as a India wonderful- should take it with a pinch of salt, because right now they have got a tension with Vietnam. Where Vietnam, sorry, not With Taiwan, where Taiwan is concerned. So the entire concentration of China is towards Taiwan, and they want peace at the Indo-China border. So how seriously we take them? I think Prime Minister Modi will definitely So take it this with a pinch of thing has salt. come from the army. It's the armed forces that have released a statement, and the army usually does not release any statement unless they are sure. So which means the withdrawal has already started. So which is We great. had the same problem before. The roads were being made, and people warned them, and they came in. So roads are being made from both sides. Yes, The Chinese are making. now we are now also it's starting making. from Indian side also that we are. Yes, absolutely. Again. Now, let me tell you very frankly. As far as I'm concerned, I'm quite happy with the No, Chinese definitely, policy. it's a great sign. With the Chinese policy of this government. अब पहली बार ऐसा हुआ है प्रदीप जी, जैसे यहाँ पर कितनी बार डिस्कस भी हो चुका है कि भाई हमारे फौजियों के पास we didn't even have enough roads, did not have railways, did not have connectivity with regard to our boys at the border. They had to take everything by mule train. मतलब म्यूल ट्रेन का मतलब है खच्चरों के ऊपर पूरा सामान लाद करके ले It takes months to go to the border. It takes months to go to the border earlier. प्रदीप जी, इंक्लूडिंग वाटर, पानी तक खच्चरों की पीठ के ऊपर वो मुश्कियों में पानी लेके जाया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि दैट द बॉर्डर रोड्स हैव बीन टोल्ड पूरा बनाइए, पूरी कनेक्टिविटी डालिए, and put as many arms, as many heavy armor, whatever you want at the border, whatever you require, we'll give it to you. And for that, I think the government deserves congratulations. आपको जो irrespective of anything else, आप मुझे संगी बुला लीजिए, जो मर्जी बुला लीजिए. Let me tell you very frankly, Narendra Modi's government has done a very good job over here, irrespective of anything else. We have been, hit on the nose. गालवान वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे हमारे 26 के 27 फौजियों को मार दिया गया, उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर तकरीबन 48 के 50 चाइनीज़ फौजी मारे वगैरह वगैरह। उसके बाद वी आर कम्प्लीटली एंड टोटली अलर्ट टू चाइनीज़ इंटेंशंस. सो एंड द चाइनीज़ नो दैट. लेट्स बी वेरी क्लियर. So, and as most American analysts and most strategic experts all over the world say, there's only one country in the world, in this Asian region, that has stood up to China, which is India. India is the only country in the world which has stood up to China and pushed back. And that's what That's our external affairs ministers tell the Western world and That's right. US, that we are the only people who can take on. But look at how your reaction is.
That's right. You don't seem to Absolutely. see your problem is our problem, but our problem doesn't seem to be your problem. So why should your problem be our problem? Yes. Absolutely. I agree with Jay Shankar over there. And whatever else, people like Subramaniam Swamy and everybody else, I mean, that are nonsense. Jay Shankar has been a good foreign minister. He has presented India's point of view in as assertive a manner as possible. The West needs to be told where you get off. That's it. And as far as the relation with Canada is concerned, अरे आपने वहां पे खालिस्तान बना रखा है भाई कनाडा में, और आप मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप हमको बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे देश में कुछ कर रहे हैं। अरे तुमने खालिस्तानियों को बुलाया वहां पे, ड्रग स्मगलर्स हैं वो सारे, देयर आर मर्डरर्स, देयर आर रेपिस्ट्स, यू हैव गॉट देम इनटू योर कंट्री, और वहां पर जाके जब वो क्राइम कमिट कर रहे हैं तो आप उसके लिए हिंदुस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? And there's a gang war killing each other. Yes. Indian intelligence agencies for that. और भाई हिंदुस्तान कहां से आ गया बीच में? आपने बुलाया ना इन अलग अलग ग्रुप्स को। और अभी तो प्रदीप जी कुछ और होने वाला है वहां पे, देख लीजिएगा। ऑल द रिटायर्ड पाकिस्तानी ISI ऑफिसर्स, ऑल द सीनियर ऑफिसर्स retired from the Pakistani armed forces settled in only 2 countries. One is England and the other is Canada. अभी तो वहां से कुछ होने वाला है, वो भी देख लीजिएगा। कनाडा में बहुत कुछ होने वाला है साहब। The Canadians are going to get a great gift from the Khalistanis and the Pakistanis. Before Mr. Justin Trudeau goes, I think he'll be humiliated even further. That's it. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। I enjoyed the show. जाने के पहले सर एक छोटी चीज़ पे कहना चाहता हूँ, वो श्रद्धा रणगढ़ जो लड़की थी, I think she deserves everybody's support. Why have they left her alone? मतलब मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। ये क्या है यार? This is not done. She has won so many gold medals, so many silver medals, और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? I hope they wake up. I really and truly hope they wake up and actually start to provide her and other girls and boys like her with the kind of help that all of them need. Well, that's just about it. आप हाँ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, अगर अभी तक नहीं किया है तो। वो तो घंटी भी बज गई है, ज़रा सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स भी भेजें, but please do subscribe to the channel. This is your channel. We try and present your point of view, and we present all points of view, notwithstanding how unpopular they are. और जहाँ तक बाबा सिद्दीकी स्टोरी का प्रश्न है, we will continue with it. We are not going to let it go. Remember that. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, One day, Matra. भारत माता की जय, जय हिंद।